दोस्तों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां एक सिंगल क्लिक से कोई भी क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, जहां डेटा न्यू करेंसी बन चुका है और जहां टेक्नोलॉजी लॉ, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के रूल्स रीडिफाइन कर रही है, टेक इट इजी विद राजीव के आज के इस एपिसोड में हम होस्ट कर रहे हैं एक ऐसे ग्लोबली और पॉपुलर टेक्नोलॉजी लीडर को जिन्होंने सिर्फ साइबर लॉ को फॉलो ही नहीं किया बल्कि साइबर लॉ को इंडिया और ग्लोबली में शेप किया है। हमारे साथ है डॉक्टर पवन दुग्गल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर साइबर लॉ एडवोकेट और दुनिया के लीडिंग साइबर लॉ एक्सपर्ट्स में से एक। ओवर 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने साइबर क्राइम लॉ, डेटा प्रोटेक्शन, एआई रेगुलेशन, ब्लॉकचेन, डिजिटल आइडेंटिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लीगल फ्रेमवर्क्स को डिफाइन करने में की रोल प्ले किया है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रियल साइबर थ्रेट्स की जो इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं आज के दौर में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंस चैलेंजेस, एआई और फ्यूचर डिजिटल लॉज और उन स्टोरीज की जो साइबर क्राइम के हेडलाइंस के पीछे छुपी होती है। गेट रेडी फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ टेक इट इजी विद राजीव दैट इज इंसाइटफुल, प्रैक्टिकल एंड थॉट प्रोवोकिंग। डॉक्टर पवन दुग्गल सर, वेलकम टू टेक इट इजी विद राजीव के इस एपिसोड में। Sir, thank you so much for giving me this opportunity. I'm privileged to host you to our new episode of Take It Easy with Rajiv. The purpose is to spread information as much as we can spread through this platform, sir. Must congratulate you. The way you started this podcast is a remarkable way to reach out to more people and make them more easy about technology. Congratulations. Thank you so much, sir. And, I was just requesting Pawan, sir, to be part of this podcast. And today we got the opportunity. It's a long wait and I'm privileged again to host you. Can we start this discussion, sir? Sure, by all means. Yes. Thank you, sir. So, we'll start with, because, I know you since last 10 years, more than 10 years. Okay. And, but in 10 years, I have been, observing whatever the trends you see on the cybersecurity area. You're the first one to raise the concern about the safety of, people or the company across. So what is the purpose of this all? Because, anything which is coming to globally, you're just focusing more to India so that everyone should be aware about this. Well, ever since I started working in technology and the law, one thing became very clear, and that was that technology is not waiting for anyone. And technology is coming up with a remarkable speed. So if you're not going to keep up pace with technology, you will be very quickly not just outdated, but even extinct. I was aware of this in 1991 when I started working with some clients on software. I was aware of it in 1995 when the internet got commercially introduced in the country, and I got introduced to the internet. And with each working day on the internet made me even more convinced that if you have to be topical, you must be up to date with what's happening. So that's the reason why 1 hour in the morning only goes for just browsing what's happened in the last 8 to 24 hours. Why? Because once you're in your day-to-day work, it becomes almost impossible to keep an update of what's happening. तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आंखों के चक्षु खोलने, अपने आप को अपडेट रखना है. And once you realize that these are what the developments are happening, then it's very easy for you to understand what could be the legal policy or the regulatory ramifications. और फिर उसका जब हम यहाँ पर भारतीय परिवेश में जब उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नए आयाम निकल कर आते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल उठ के आते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है. बट महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया है. Once you start raising questions, once you start raising red flags, that's the beginning of a discussion. And every succeeding technology that's come in has only taught me one thing, that no technology is perfect, no technology respects law, nor policy, nor regulation. Hence, the law, which is invariably 50 steps behind technology, must constantly keep on updating. So that's the reason why I have to always keep on looking at what are the new trends, sensitizing them, then seeing them how are they going to be applicable in the Indian context, and then advise the government, advise stakeholders, write about it, help evolve the legal frameworks in this regard. For example, AI has been with us since 1956, but I think the kind of developments that took place in the last 6 years in AI
has been phenomenal ever since the advent of generative AI and ChatGPT. Every single day in an AI world is a new day. Why? It's not just a new model, it's not just a new approach, it's also a new paradigm shift. And each paradigm shift brings across with its own self some own remarkable challenges. So once you're updated with what the developments are, it becomes very easy to understand what the challenges could be and then talk more about it. बट टेक्नोलॉजी ने एक चीज़ हमें सिखाई है, वो ये है कि आप कभी भी मस्त हो कि ये नहीं कह सकते मुझे सब कुछ आता है. मुझे कुछ नहीं आता. इनफैक्ट रात भर जब मैं सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो पहला जो एक फीलिंग से उठता हूँ, बड़ी अनईजीनेस वाली फीलिंग है. बॉस मैं 8 घंटे सो रहा था, उन 8 घंटे में पूरी दुनिया भर में क्या क्या हो गया मुझे पता ही नहीं है. तो एटलीस्ट लेट मी स्टार्ट अपडेटिंग. सो अपडेशन इज द ओनली नेम ऑफ द गेम एज वी गो ऑन टेक्नोलॉजी. राइटली सेड, बिकॉज टेक्नोलॉजी हर घड़ी बदल रहा है. अभी हम बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी में क्या अपडेट आ गया होगा और हम पीछे ना रह जाए. इसी होर में हर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने में. सर रिसेंटली आपने मतलब बहुत से जहां हम कवर करने भी एज ए मीडिया आपके पास आए थे, कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स भी आपने किया ना कि इंडिया लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे. आपने इंडिया में एक इवेंट अभी किया था AI के ऊपर. सो व्हाट वाज दैट? क्या इनिशिएटिव था वो? देखिए, मैंने बहुत शुरुआत से समझ लिया कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उसके साथ में ना तो किताबें आती हैं ना लिटरेचर आता है. तो जो सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है कि आप लोगों के साथ बातचीत करें. एंड कॉन्फ्रेंस बिकम्स अ रिमार्केबल मीडियम इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. सो 2014 में हमने शुरू करी थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी. आधे दिन की कॉन्फ्रेंस थी. हमने सोचा बहुत अच्छा है. हर साल वो कॉन्फ्रेंस बढ़ती गई और 12 साल बाद अभी कॉन्फ्रेंस जो है 3 दिनों की हो गई है. 37 सेशंस हो गए, 300 स्पीकर्स हो गए, 1500 पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड केम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. दैट वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी दैट टुक प्लेस इन नवंबर 2025. लेकिन उससे पहले क्योंकि AI में इतना ज़्यादा प्रचलन हो रहा था, हम लोगों ने 2025 में 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए. एक तो हमने ग्लोबल समिट किया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक, लॉ एंड गवर्नेंस 2025, where we looked at the emerging legal ramifications of not just artificial intelligence, but also of emerging technologies like blockchain, like metaverse, like quantum computing. In addition, we also in September 2025 came up with the Global South Artificial Intelligence Law and Governance Dialogue, which was a kind of a collation of what should be the approaches and strategies that Global South nations need to adopt in the context of regulation of AI. Both these were international standard events, and more importantly, the Global Summit on Artificial Intelligence, Emerging Tech, Law and Governance 2025 came up with a New Delhi Accord. This was a kind of a document which was a distillation of all the recommendations made in the various sessions, and this accord came to be accepted at the Global Summit, which is now being circulated globally and has already become a reference point in terms of evolving legal jurisprudence concerning artificial intelligence and emerging technologies. तो उद्देश्य ये रहता है कि साहब नए आप कॉन्फ्रेंसेस करिए, नए मुद्दों को उठाइए, मुद्दों के साथ क्या प्रभाव सरकार पर, राष्ट्रों पर, लोगों पर, समाज पर होगा, उस पर नज़र डालें और अल्टीमेटली कुछ समाधान निकालने का प्रयास करें. हमारा जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, हमारा उद्देश्य होता है कि हम टॉक शॉप ना करें. भाई आके आप आ गए, बात करके चले गए, कुछ नहीं हुआ, उसका कोई ताल्लुक नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर कॉन्फ्रेंस के बाद आपका एक आउटकम डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस को कोलेट करे. एंड आई थिंक वंस दीज आउटकम डॉक्यूमेंट्स कम इन, they become great reference points for various stakeholders who have not been able to yet come to the event to at least know what has been happening in that particular event. And once it gets circulated, like the outcome document of the International Conference on Cyber Law, Cyber Crime and Cyber Security has got various buckets of recommendations. One for the international community, one for United Nations and its agencies, one for national governments, and one for the Indian government. And then it gets circulated globally to all the 192 countries, their top heads and their ICT ministers, all the UN bodies, all international governmental organizations and non-governmental organizations, regional bodies, and of course within India, it gets circulated to the entire government of India and all ministries. तो उद्देश्य यही है कि साहब जो हमने बात करी उससे जो निचोड़ या निष्कर्ष निकला हमने आपके साथ शेयर किया और अब हम उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप में से जो आपको अच्छा लगता है आप उसके आधार पर कुछ कदम उठाइए ताकि लोगों की बेहतरी हो सके. अल्टीमेटली द ह्यूमन राइट्स एंड द ह्यूमन लीगल इंटरेस्ट्स must be protected under any circumstances
come what may, whatever be the new technology that comes arrives. Absolutely rightly you said, sir, and it's a very proud movement as an Indian कि आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं और आपकी फर्म कोई इनिशिएटिव लेती है और वो ग्लोबली उस चीज़ को भेजा जाता है. दिस इज काइंड ऑफ वी आर नॉट, यू आर नॉट जस्ट डूइंग फॉर द इंडियन पीपल, यू आर जस्ट फॉर द ग्लोबल पीपल ऑल्सो, यू आर टेकिंग केयर ऑन दैट पार्ट. सो दिस इज कोशिश हो रही होती है कि देखिए हम लोग ना इस पूरी लाइफ में बड़ी छोटे से समय के अंतराल के लिए यहाँ आए हैं, और इस स्मॉल टाइम फ्रेम में आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं जिसमें आप लोगों की बेहतरी कर सकें, वो अल्टीमेटली ज़्यादा बेनिफिशियल है. वरना तो हम अपने रोज़ के अपने जद्दोजहद में लगे रहते हैं. बट आई थिंक विद दीज टेक्नोलॉजीज कमिंग इन वी हैव बिगर चैलेंजेस, एंड देयरफॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, and therefore everybody is concerned that the issues raised by and the challenges raised by these emerging technologies are met with a uniform approach, so that ultimately human interests and human legal safeguards are adequately protected. As we say that global village, we all are living in a global village. बहुत लोग आपको जानते हैं करीब से, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं. इस प्लेटफॉर्म पे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे, थोड़ा सा हमारा वो भी पार्ट है. सो एम आई अलाउड, सर? प्लीज गो अहेड. Sir, you have been recognized globally as a cyber law expert. What drew you to cyber law decades ago, जब आपने शुरू किया, when digital threats were almost non-existent? And was it foresight, curiosity, or something else? I think we don't do anything with our own hands. There's some bigger force that's out in the universe that pushes you in a particular direction. तो अगर आप सोचते हैं मैंने कुछ किया, तो मैं बहुत क्लियर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है. कुछ हिडन फोर्स है, कुछ भगवान की ताकत है जिसने आपको कहा कि आप इस रास्ते में जाइए. तो 1991 में कुछ सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स आए. देखिए मैंने 88 में वकालत शुरू करी थी, तो उस वक्त तो मतलब कुछ काम ही नहीं आता था. तो विद द रिजल्ट जो काम आया आपने लिया. 91 में कुछ सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स आए, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में जगा. माइंड यू, आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मेरा साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. फिर थोड़ा उससे पीछे भी जाए तो सर, स्कूलिंग ये सब कैसे? स्कूलिंग मैंने स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल मथा रोड से करी. और ह्यूमैनिटीज़ में करी. यहाँ पर टॉप किया, वहाँ पर मेरिट लिस्ट में आए. उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज चले गए, वहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स किया, वहाँ पे टॉप किया. फिर शुरुआत से यूपीएससी तो नहीं करना था क्योंकि आपने? नहीं, यूपीएससी मुझे कभी नहीं करना था, बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर कि बॉस मुझे किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी. जो कुछ करना है आपने खुद अपना रास्ता बनाना है. फिर उसके बाद लॉ किया, फैकल्टी ऑफ लॉ से, वहाँ से भी आई टॉप दैट. एंड देन आई स्टार्टेड इन तीसरी, मतलब सबसे लोएस्ट कोर्ट में. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जब तक आपके हाथ साफ नहीं होंगे आपको क्लैरिटी नहीं होगी. तो सब नॉर्मल चलता रहा. 91 में 91 में कुछ सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स आए, तो उनके काम को करते करते सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आया. फिर इंटरनेट आ गया. 15 अगस्त 1995 में कमर्शियली इंट्रोड्यूस हो गया इंडिया में. 2-3 महीने बाद ही मेरा एक्सेस इंटरनेट पर हो गया. तो 2 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया. क्यों? ये एक नया प्रकार का पैराडाइम था जो आपने कभी देखा ही नहीं था. माइंड यू, उस ज़माने में स्पीड्स कितनी स्लो होती थी. 14.4 के मॉडेम, डायल अप मॉडेम हुआ करता था, और उसके बावजूद भी हमें लगा कि बॉस ये तो बहुत बेहतरीन है. 2 महीने के बाद जब पागलपन हटा और फिर एक वकील होने के नाते मैंने इसको देखना शुरू किया, तो मैंने कहा कि ये नेटवर्क आने वाले समय में बहुत बड़ा होगा. इसलिए कहीं ना कहीं उसकी कानूनी जो बारीकियां हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी. इसलिए मैंने कहा चलिए इस पर काम करते हैं. अब इसके लिए विरोध मेरे घर में ही शुरू हो गया. माई फादर हु वॉज अ लॉयर वॉज डेड अगेंस्ट मी स्पेंडिंग एनी टाइम ऑन दिस न्यू पैराडाइम कॉल्ड द इंटरनेट. इससे तब क्या सारा टाइम बेकार लगे रहते हो, अपना टाइम क्यों खराब करते हो? सो ही वॉज कंसर्न कि बॉस ऐसा सारा टाइम यहाँ लगाओगे तो अपनी वकालत में कहाँ जाओगे. सो आई टोल्ड हिम, बॉस डोंट वरी, मैं अपने बाकी सोशल फंक्शन जो हैं ख़त्म कर दूंगा. मैं बाकी जगह नहीं जाता, लेकिन मैं कुछ देर यहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँगा, प्रोवाइडेड मेरी वकालत में कोई फ़र्क ना पड़े. तो उन्होंने कहा ठीक है. फिर धीरे धीरे शुरू हुआ सिलसिला. उस ज़माने में साइबर लॉ शुरू हुआ नहीं था, बट आई थॉट साइबर लॉ इज गोइंग टू बी अ बिग डिसिप्लिन. And I was very, very clear humanity is moving towards an irreversible change with the coming of the internet. Why? Because this was a network that's going to collect, host, and be a repository of humongous volumes of information. And tomorrow, it will be the internet to which people will automatically, regularly log on to as a natural default. So, काम उसमें शुरू हुआ. उस ज़माने में यहाँ पर कुछ काम नहीं होता था. तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स बने 1998 में. उसके साथ जुड़ गए, वहाँ काम करने लगे. यूएन एजेंसीज के साथ काम करने लग गए. फिर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक मॉडल लॉ को पारित किया ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स.
और फिर विभिन्न राष्ट्रों को कहा बॉस अपने नेशनल लॉज लेकर आइए ऑन प्रमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इंडिया में भी काम शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैं फिर जुड़ गया। उस वक्त ज़माने में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होता था, वहाँ जुड़ा। आईटी बिल बना 1999, वो संसद में इंट्रोड्यूस हुआ, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी तक पहुँचा। तो आई वॉज इन्वॉल्व विद द वर्किंग इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंटेरियंस। फाइनली ये लॉ IT एक्ट सन 2000 में हम लोगों ने पास कर दिया। Which government was there? This was the Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee government. Right. And it was passed at the time when Mr. Pramod Mahajan was the Okay. minister for both IT and the minister Aviation, telecom or something. Minister for IT and Parliamentary Affairs. Okay, Parliament. तो उनकी स्किल्स की वजह से ये बिल आया, और ये बिल उस समय पर आया जहाँ पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, और ये IT एक्ट बिना डिस्कशन पारित हो गया और फिर इम्प्लीमेंट हो गया अक्टूबर 2000 में। मैं बहुत क्लियर था, हालांकि मैं उस वक्त भी मंत्री साहब को कह रहा था, साहब इतनी जल्दी मत करें। उनको था कि भाई भारत जो है जल्द से जल्द 12वां राष्ट्र होना चाहिए वर्ल्ड में जो साइबर लॉ लेकर आए। ऐसे जो हमने बनाया है बहुत अच्छा नहीं है, उसमें कुछ और हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट उनका कहना था कि अगर हमारा संविधान इतनी बार अमेंड हो सकता है तो IT एक्ट क्यों नहीं। सो वी गॉट द IT एक्ट। तो IT एक्ट मैं बहुत क्लियर था, ये ऐसा लेजिस्लेशन है जो आने वाले टाइम में एक बहुत ही विशाल रूप ले लेगा। एंड एज टाइम पास्ड बाय माई कन्विक्शन गॉट मोर एंड मोर रिकन्फर्म्ड। आज की बात जो मैं करता हूँ तो IT एक्ट भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है, क्योंकि अगर आप इंडिया में कुछ भी करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस या डेटा और इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के साथ डील करता है, तो आप IT एक्ट में कवर हो जाते हैं। सो IT एक्ट इतना ब्रॉड लेजिस्लेशन बन गया, किसी को उम्मीद भी नहीं था। 2008 में मुंबई अटैक्स हुआ, उससे पहले कई बार मैं लिख रहा था, मैं पार्लियामेंट के सामने 3 बार मैंने टेस्टिमनी दी एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट on behalf of different industry groups, whether it was FICCI, ASSOCHAM or CII, telling the parliamentary standing committee कि बॉस ये लॉ सफिशिएंट नहीं है, आप इसको अमेंड करिए, इसमें और प्रोविजंस लेकर आइए ताकि जो गैप्स हैं उनको हम फिल कर सकें। फिर उसके बाद जब मुंबई आक्रमण हुआ, उसके तुरंत बाद विदिन 30 days वी वर एबल टू अमेंड दिस लॉ। तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मतलब आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि ये सेगमेंट है आने वाले समय में हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब 95 में काम शुरू किया था तब वो दौर मोबाइल का था, तो सब लोग मोबाइल के दौर पर थे। मैं बहुत क्लियर था कि मोबाइल तो केवल एक डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल स्वयं अपने आप में एक डेस्टिनेशन नहीं है। एंड मोबाइल विल कीप ऑन चेंजिंग, नए नए उसके अवतार आते रहेंगे। इसलिए जो नेटवर्क होगा, जो अल्टीमेटली जहाँ पर मोबाइल कनेक्ट होगा, वो बहुत ज़रूरी है, वो बैकबोन बन जाने वाला है। So that's the reason I was convinced about the humongous impact of internet right from 1995, and that's why I stuck onto this particular space. बहुत से लोगों ने कहा क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं। I was the counsel for India's first cybercrime conviction. 2003 में हमने कन्विक्शन कराई। I was representing a company called Sony, और भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन थी। और वो ज़माना कितना भोला हुआ करता था। क्या कन्विक्शन क्या था सर उसमें, क्या हुआ? वो ये केस था CBI वर्सेस आरिफ अजीम का। इसमें हुआ क्या था कि सोनी की एक वेबसाइट चलती थी, उसका नाम ज़माने में होता था sony-sambandh.com। सोनी ये वेबसाइट NRIs को टारगेट करता था, कहता था कि साहब ऐसा है, अगर आप NRI हैं, दुनिया में कहीं पर भी हैं, इस वेबसाइट पर आइए, जो कोई सोनी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे, हम उसको इंडिया में आपके फ्रेंड्स को या फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे, उनकी फ़ोटो खींचेंगे और आपको फ़ोटो भेजेंगे एज प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो कॉन्सेप्ट बहुत नॉवल था, बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर रही थी वेबसाइट। एक दिन 2002 में कोई लड़की आई ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट कॉल्ड बाबरा कैंपा। उसने कहा भाई मुझे ये 21 इंच वाला टेलीविज़न चाहिए, एक कॉर्डलेस फ़ोन चाहिए, ये मेरे दोस्त हैं आरिफ अजीम, नोएडा रहते हैं, उन्हें भिजवा दीजिए। तो जब ये ऑर्डर बैकएंड पर आया तो कंपनी थोड़ी ना आश्चर्यचकित हुई। वाई? बिकॉज अमेरिकन गर्ल, मुस्लिम बॉय, फ्रेंड्स, बात जमी नहीं। तो उन्होंने आरिफ अजीम को कॉल किया। आरिफ अजीम ने कहा सर हाँ मेरी फ्रेंड मुझे भेज रही है, आप मुझे कृपया भेजिए। सो एवरीथिंग वाज क्लियर। तो जाके सोनी की टीम ने उनको ये टीवी और कॉर्डलेस हेडफोन दे दिया। आरिफ अजीम ने तस्वीरें खिंचवाई और वो तस्वीरें बाबरा कैंपा को भेज दी गई।
जब असल बाबरा कैंपा के पास बिल आया तो उसने कहा साहब ये मेरी ट्रांजैक्शन तो है नहीं, उसने डिसोन कर दिया। तो $600 की चपत लग गई सोनी को। अमाउंट बहुत छोटा था, लेकिन सोनी ने कहा अब हम उसकी तह तक जाना चाहते हैं कि किसने किया। हमारे पास तस्वीर थी आरिफ अजीम की, तो उस वक्त हम लोगों ने फिर कंप्लेंट करी सीबीआई ने केस दर्ज किया और उस आदमी को पकड़ा गया जो एक कॉल सेंटर में काम करता था नोएडा में। तो उस ज़माने में लोग कितने भोले होते थे कि साहब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ, मैं अपने ही नाम पर मिसयूज़ किया हुआ क्रेडिट कार्ड का प्रोडक्ट ले रहा हूँ विदाउट रियलाइजिंग कि शायद मुझे भी कहीं पकड़ा जाएगा। सो ही वॉज कॉट, ही वॉज कन्विक्टेड इन फॉर ऑनलाइन चीटिंग। This was the first conviction. फर्स्ट साइबर क्राइम कन्विक्शन इन इंडिया। और जब सेंटेंस की बात आई तो कोर्ट सेड कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, चलिए थोड़ा हम लीनेंट हो जाते हैं, इन्हें प्रोबेशन पर छोड़ते हैं 1 साल के लिए। तो उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। तो उसके बाद कई सारे ऐसे मैटर्स हुए जहाँ पर कन्विक्शंस हम लेके आ पाए। बट देन 2008 द लॉ गॉट चेंज्ड एंड द लॉ मेड सम फंडामेंटल चेंजेस इन द ईयर 2008 in terms of making almost all cyber crimes as bailable offenses. तो वो तो रेसिपी फॉर डिजास्टर था। अगर आप इंडिया में लोगों को बोल दो कि साहब आपको बेल तो अधिकार के तौर पे मिलनी है, तब तो जो भी डर उनके दिलों में होगा वो तो चला ही जाएगा। बट सर इसकी क्या जरूरत थी, ऐसे क्यों किया गया उसको नॉन बेलेबल? उसका उद्देश्य शायद ये था कि साहब ऐसा है कि हम लोग एक ऐसा लॉ लाना मिसयूज हो रहा चाहते था क्या हैं। बीच में ऐसा? हाँ देखिए, एक तो उसका मिसयूज हो रहा था, दूसरा लोगों को लगने लगा था कि साहब आईटी एक्ट की तलवार किसी के सिर पर गिर सकती है, तो ये बात सही नहीं है, बिजनेसेस को डरना नहीं चाहिए। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम आपकी जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसको कम कर देते हैं, बेलेबल कर देते हैं, लेकिन हम आपकी जो डैमेजेस का क्वांटम है बढ़ा देते हैं। जो डैमेजेस 1 करोड़ तक थे 2000 वाले लॉ में, वो 2008 में 5 करोड़ तक हो गए। सो आइडिया वॉज टू मेक इट मोर बिजनेस फ्रेंडली, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि साइबर क्रिमिनल्स को लगने लग गया कि ये बड़ा साइबर क्राइम फ्रेंडली लॉ है। क्यों? क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे बेल पर तुरंत रिहा हो जाऊंगा, जैसे मैं बाहर आऊँगा मैं अपने बर्कलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय करूँगा और आराम से बैठ जाऊँगा और फिर मेरी कन्विक्शन नहीं होगी। दैट्स द रीज़न वाई साइबर क्राइम कन्विक्शंस इन द कंट्री वर्चुअली केम टू अ नोज डिप। एंड उसके बाद हमारे यहाँ बहुत अकाल सा पड़ गया है साइबर क्राइम कन्विक्शंस का। और वो 2008 की बात थी एंड टुडे इज 2026। हम इन 18 सालों में अभी तक इस लॉ को दोबारा अमेंड नहीं कर पाए हैं। बट while all this is happening, so much of technology has changed. Cryptos have come in, metaverse has crystallized and has matured, blockchains are maturing. Now quantum has come in a big way, and artificial intelligence is completely changing the paradigm. So in this context, I think I've been telling the government it's time to come up with dedicated laws on artificial intelligence and emerging technologies. देखिए, आपने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, बहुत अच्छी बात है, इनोवेशन को सपोर्ट करना है, एक्सीलेंट है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज होता है उसको तो रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में लोग डंडे की भाषा समझते हैं कि जब तक उनके पता है कि उनके सिर पर डंडा आने वाला है तब तक तो वो कानून का पालन करेंगे। जिस दिन उनको पता लगता है कि डंडा तो है ही नहीं, तो कानून का पालन होता नहीं है। सो समवेयर डाउन द लाइन द लॉ मस्ट कम अप विद deterrent लीगल consequences should you go ahead and misuse the technology to the detriment of either the victim or to the detriment of the system or the government or the nation at large. तो अभी जब हमने 2008 में अमेंडमेंट किया तो कुछ यूनिक हम प्रोविजंस लेकर आए। हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिटेल्ड एक परिभाषा लेकर आए, डेफिनेशन which continues to be relevant today. Also, we came up with a very exhaustive new provision on cyber terrorism in the form of Section 66F. पूरी दुनिया भर में इस तरह का कोई प्रोविजन आज तक मौजूद नहीं है जो भारत में हम लोग 2008 में लेकर आए। सो हमारे लॉ के बेनिफिट्स भी बहुत थे, कुछ नॉट सो बेनिफिट्स भी थे, बट वो कहते हैं ना मिक्स बैग होता है लाइफ का, प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं। हाँ, बट बाय एंड लार्ज देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट नाउ विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और द DPDP एक्ट कमिंग इन, द IT एक्ट हैज गॉट स्लाइटली मोर स्ट्रेंथेंड, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, हमारा देश इतना बड़ा है और इतना अभी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने जा रहे हैं, तो वी जस्ट नीड सच काइंड ऑफ लॉ जो कि प्रोटेक्ट कर सके। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट कंपनीज ऑल्सो, जो जिस पे सारी इकोनॉमी चल रही है, पूरा दुनिया चल रहा है। सर, आई विल जस्ट मूव टू फ्यू ऑफ द पार्ट ऑफ योर इनिशियल करियर सर। out of all the cyber law cases you have handled so far, which one was so shocking or unexpected till which still sticks with you? वैसे तो बहुत सारे साइबर लॉ साइबर क्राइम वाले केसेस किए हैं और हर केस
अपना बच्चा होता है, तो कोई एक बच्चे को पिकअप करना कि साहब ये मेरा फेवरेट बच्चा है, मुश्किल होता है. बट ईच केस ब्रिंग्स अक्रॉस इट्स ओन यूनिक फीचर्स. मैं 2 केसेस के बारे में जिक्र करना चाहूँगा. पहला केस हुआ था, वो बात हुई है अर्ली 2000s में, जहाँ पर उस ज़माने में ईमेल का प्रचलन कम होता था. तो वहाँ पर एक ऐसा केस सामने आया जहाँ पर एक अनोनिमस अकाउंट खोला गया और किसी की कंपनी के एमडी को टारगेट किया गया. और उसकी यूनिक फीचर ये होती थी कि वो उस अकाउंट से एक ईमेल हर 60 दिन में आता था. एक ईमेल में 10 A4 साइज पेजेस होते थे. उन 10 पेजेस में नए नए प्रकार की हिंदी गालियां हुआ करती थी और उसमें एक भी गाली रिपीट नहीं हुआ करती थी. तो 10 पेजेस ऑफ हिंदी गाली एक बार आ गए और उसने ना केवल एमडी को दे दिया, पूरी कंपनी में सबको सर्कुलेट कर दिया. फिर अगर 60 दिन बाद नेक्स्ट वर्जन आता था, उसमें भी 10 नए पेज की 10 नई गालियां होती थी. वो भी अलग ना पहले टाइम रिपीटेड ना दिस टाइम रिपीटेड. सर उस समय तो गूगल भी इतना हेल्प नहीं कर पा रहा है, इतनी गालियां कहां से रही थी. इतना ज्यादा उन्होंने रिसर्च किया था, जब वो फाइनली आइडेंटिफाई हुए और उनके सिस्टम को पकड़ा गया, तो उनके सिस्टम्स में अलग अलग फोल्डर्स बने हुए थे कि इस भाषा में, मलयालम में ये गालियां हैं, हिंदी में ये Tier 1, Tier 2, Tier 3 गाली होती हैं, और अलग अलग तरीके से उनकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च थी. तो सर ब्रेक थ्रू कैसे मिला इसका, आईपी से कौन कर रहा है? अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं जब आदमी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं गलती कर देता है. उन्होंने एक जगह गलती कर ली, आईपी एड्रेस मैप हो गया, आईपी एड्रेस से उनकी लोकेशन मैप हो गई, एंड दैट्स हाउ वी वर एबल टू आइडेंटिफाई हिम. बट मुझे लगने लगा कि देखिए ह्यूमन इंजेन्युटी क्या है. ठीक है, आप भड़ास निकालना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये है कि आप दुनिया की सारी नई नई गालियां इकट्ठी करेंगे और आप करके टारगेट करेंगे किसी को. दिस वाज अ फिनोमिनल स्टफ. सो दिस स्टेड विद मी कि देखो ह्यूमन माइंड अगर अपनी आई पे आ जाए तो आपको बेड़ागर करने में कोई भी हिचकिचाता नहीं. That's one. It's a shocking one. ऐसा one तो सर सच में this is great example because क्या हो सकता है, और thanks to you guys कि आपने उस चीज को ट्रैक करवाया, रोका, और बढ़ना तो उनको आती रहती गालियां. आती नहीं, वो देखिए, और वो आती नहीं थी, मतलब उनकी 6 मेल्स आई, पूरे साल तक सिलसिला चलता रहा, और मतलब 120 पेजेस ऑफ गाली की एक कंपाइलेशन हुई. सो मच सो कि जब हम पुलिस के पास लेके गए तो पुलिस ने वो कंपाइलेशन की 2-3 कॉपियां तो दे दो, हम सर्कुलेट करना चाहते हैं. तो दिस इज व्हाट द सिनेरियो वाज. ओह गॉड. तो वो दैट इज वन केस दैट स्टक इन माय माइंड. और एक हाल ही में केस आया है विच इज एक्चुअली शेकन माय कॉन्शियंस. यहाँ पर एक नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली के पास एक छोटा शहर कस्बा है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर पढ़ाती, और उस टीचर ने, इंग्लिश की टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और किसी दिन उन्होंने किसी बच्चे को डांट दिया. बच्चे ने कहा भाई तुम्हारे बैंड बजाएंगे. बच्चे ने एआई का इस्तेमाल किया, एआई के माध्यम से उस लेडी के डीप फेक ऑब्सीन वीडियो बनाए, और फिर उस वीडियो को स्कूल की व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, जो पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है वो अलग डाला, और पेरेंट्स को इंस्टिगेट किया कि साहब आप जाइए इस टीचर के खिलाफ शिकायत करिए. लोगों ने आर्म्स उठा लिए, लोगों ने जाके शिकायत करी उस लड़की के विरुद्ध कि साहब ये लड़की तुम्हारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, दिस इज़ नॉट द एक्सेप्टेबल नॉर्म्स. और फिर फाइनली उस स्कूल ने उस लड़की को टर्मिनेट कर दिया. और टर्मिनेट करने के बाद वो इतनी अच्छी टीचर, उसे पता नहीं क्या हुआ, इतनी डिप्रेशन में गई, फाइनली उसने सुसाइड कर लिया. तो आप देखिए, किसी बच्चे के द्वारा एक टेक्नोलॉजी का मिसयूज और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट सुसाइड. तो दैट मीन्स हम उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते. तो दीज काइंड ऑफ केसेस आर एक्चुअली कमिंग अप एंड शेकिंग योर कॉन्शियंस एज अ पेरेंट, एज अ यूजर एंड एज अ लॉयर, कि शायद उस बच्चे ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई मैं डीप फेक बनाने लगा हूँ, उसका ये असर होगा कि वो अपनी जान दे देगी. और अब जान दे देगी तो अब इम्पोर्टेंट इशू है कि जिम्मेवारी किसकी है. क्या वो जिम्मेवारी उस लड़के की है? क्या वो जिम्मेवारी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की है? क्या वो जिम्मेवारी उस एआई के एल्गोरिदम की है, या उस एआई के कोडर की है कि उसने रीजनेबल सेफगार्ड्स रखे ही नहीं कि साहब इस तरह दुरुपयोग आप नहीं कर सकते. सो आज की तारीख में लॉ बिल्कुल अनक्लियर है, एंड दैट्स वाई जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, अब वो ज़माने चले गए कि साहब एआई रेगुलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ये डिस्कशन थी 2025 की. 2026 में डिस्कशन इज वेरी सिंपल, ऑन अ सिंपल पॉइंट. If AI causes you harm, who's going to be responsible? That's the fundamental question that has to be answered. And that's a question that almost no jurisdiction in the world is yet beginning to apply their minds to. 2025 में मैंने एक initiative launch किया था. It was called the Global Artificial Intelligence, the International Artificial Intelligence Legal Framework Initiative, जिसमें हमने अलग अलग à la carte मेन्यू दिए कि साहब आप कंट्रीज़ हैं, आप लॉज लेके आना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको अलग अलग à la carte मेन्यू ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स देते हैं, जो आपकी मर्जी आए पिकअप कर लीजिए
और अपना लॉ लेकर आइए. दैट वाज वन दैट वाज हैपनिंग. अभी हम लोगों ने इस जनवरी 2026 में वी हैव लॉन्च्ड समथिंग नोन एज एन इंटरनेशनल AI लीगल हार्म्स रजिस्ट्री, वेयर वी आर सेइंग कि साहब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाने वाली है. अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आता है वेयर हार्म हैज बीन कॉज्ड टू ह्यूमन, please report here, because on the basis of such reporting we will be able to analyze how things can actually work across. And finally, this year is all about accountability. In fact, we have started an initiative called the Global Artificial Intelligence Accountability Law and Governance Institute, जहाँ हम accountability के अलग अलग principles को एग्जामिन कर रहे हैं, कैसे उनको आगे डेवलप करना है उसकी बात कर रहे हैं. और मैंने तो एक किताब लिखी है एंड ऑफ 2025 में, उसका नाम है Regulating AI Vortex, the Dougal Doctrine, where I've actually compared artificial intelligence to a vortex, a tornado that sucks everything in and then transforms everything outside and when it throws back. And I've given a set of 10 legal principles as part of the Dougal Doctrine, which are going to be evergreen legal principles, which will be relevant for the purposes of regulating artificial intelligence, whether it's the current narrow artificial intelligence we are talking about, whether it's agentic AI, artificial general intelligence, or even super intelligence. So I'm very, very clear, you will have to start making people accountable. अभी हाल ही में क्या हुआ है, ग्रॉक जैसे AI ने सेक्सुअल इमेजेस जनरेट करने शुरू हो गए. आपने किसी लड़की की तस्वीर बताइए, कहिए जी बिकनी टेंट बना दीजिए, ये कर लीजिए. गवर्नमेंट ने कहा कि सॉरी दिस इज नॉट ऑन, आपको एज अ ग्रॉक कार्रवाई करनी पड़ेगी. इनिशियली ग्रॉक ने कहा कि सॉरी नो प्रॉब्लम सर, मैंने तो आपको पेन दिया है, अब पेन से आप क्या लिखते हैं वो तो आपकी प्रॉब्लम है, पेन को तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते. बट दैट वॉज एन आर्ग्यूमेंट दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. सो कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट वंस अगेन वेंट बैक टू देम एंड सेड यू बेटर विल टेक एक्शन, अदरवाइज योर स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी इज गोइंग टू बी टेकन अवे. कॉन्सिक्वेंटली ग्रॉक रिलेंटेड, और अब ग्रॉक ने करीबन 800 या 600 ऐसे अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया है और कदम उठा रहा है ताकि इस तरह के मिसयूज ना हो सके. तो 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी रिच ईयर, an year where we are going to see more focus on accountability of AI. Now, the important issue is not whether the AI needs to be regulated. The important issue is to give the structured liability for harms caused to humans. और उसके लिए I've come up with a new theory. It's called the multi-tiered legal approach to liability. मेरा कहना है कि साहब अगर AI ने आपको हार्म दिया है या आप पर हार्म किया है, आपको नुकसान किया है, तो किसी एक बंदे की या एक एंटिटी की आप लीगल लायबिलिटी नहीं बना सकते. कोडर की अलग लायबिलिटी होगी, एल्गोरिदम की अलग लायबिलिटी होगी, कंपनी जो बना रहा है उसकी अलग लायबिलिटी होगी, कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसकी अलग लायबिलिटी होगी, और शायद कुछ लायबिलिटी मेरे हिसाब से यूज़र की भी तो होगी. भाई आपको किसने बोला कि आप आंखें बंद करके अंधाधुंध होते हुए AI की हर चीज़ को मानते चलिए? एंड अल्टीमेटली प्रॉब्लम बिगड़ आ रही है. इन इंडिया वी आर नाउ गोइंग अ न्यू रेवोल्यूशन. आई कॉल इट द रेवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव कलोनियलिज्म, जहाँ पर इंडियंस कॉग्निटिव कलोनियल स्लेव्स बनते जा रहे हैं इस बिग टेक कंपनी से. मतलब आज तो हालत ऐसी है कि हर चीज़ चैट GPT, हर चीज़ AI के पास चले जाओ. तो लोगों ने सोचना बंद कर दिया है. लोगों का कहना है कि बॉस जो AI कह रहा है चलो ठीक कह रहा है, मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. तो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसमें जंक लग रहा है. उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप कहीं ना कहीं कॉग्निटिव स्लेव बनते जा रहे हैं ऑफ बिग टेक कंपनीज. और AI इतनी भी महान नहीं है कि साहब आपको सही रास्ता दिखाए. AI बहुत क्लियर है, सेल्फिश है, और मैं तो कहता हूँ विशियस भी है. क्यों? क्योंकि वो आपको कब बिलो द बेल्ट मारेगी आपको उसका अनुमान लगा ही नहीं सकते. वाई? AI is constantly playing with you, your data, and even your mindsets. It's actually creating echo chambers by means of which you are giving a false sense of security. Well, this is the new world. The problem with AI is कि वो आपको वो संगीत सुना रहा है जो आप सुनना चाहते हैं. अब वो संगीत सही है या नहीं है वो उसका ताल्लुक नहीं है. वो हेलुसिनेशन कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गप्पे मार रहा है, और इतनी कॉन्फिडेंस से गप्पे मार रहा है कि आप अक्सर फॉक्स हो जाते हैं. सो मच सो कि बड़े बड़े लोग भी फॉक्स हो जाते हैं. यहाँ पर AI के एक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया में जो AI में हेलुसिनेशन में काम करते हैं, और उन्होंने एक पेपर वहाँ की म्यूनसिपैलिटी को दिया, लीगल पेपर, और पता लगा उसमें भी उन्होंने AI से चीज़ें जनरेट करनी थी जो झूठी थी. सो बॉटम लाइन इज वी कैन नॉट नाउ नो लॉन्गर ट्रस्ट AI. You will have to start looking at a new way of treating AI only as a tool, not as a master. It's good as a servant. But once you start making AI as the foundation, then there's a problem. हमारे एक दोस्त हैं, उनकी ना लाइफ में एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम अच्छी कहें बुरी है कि वो ज्योतिष में बहुत मानते हैं.
और वो अलग अलग जगह नए नए ज्योतिषों के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। अब किसी ने उनको बताया कि साहब ये नया AI प्रोग्राम आया है, उन्होंने अपने पर्सनल डिटेल दिए, अपनी सारी कुंडली दे दी और उसके बाद विश्लेषण ले लिया। अब उनका कहना है कि साहब जो विश्लेषण AI ने दिया है वो कोई ह्यूमन दे ही नहीं सकता। तो वो सुबह रोज उठते हैं, पहला उठ का काम उनका ये होता है कि उठ के AI से पूछो आज के दिन मेरा क्या होने वाला है। तो अगर ये सिचुएशन आ गई है तो मुझे लगता है आज बहुत ही हम एक डेंजरस पड़ाव पर आ चुके हैं। The entire human population is at a precipice, and therefore we will have to come up with appropriate mechanisms so that we can protect human interests, human cognitive thinking. Ultimately, अगर हमारी सोचने की क्षमता ही आपने खत्म कर देनी है AI में, तो वैसे हम तो खत्म हो ही जाने वाले हैं। देखिए, AI has made us redundant and will make us redundant after some point of time. Look at AI agents. छोटे छोटे काम इंसानों की तुलना में एक AI agents इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में 500 टाइम्स बेटर करते हैं। हाँ, आज की तारीख में AI उतनी ज़्यादा तो नहीं विकसित हुई है कि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पर आ गए हैं, बट बहुत जल्दी 1-2 साल में वो AI आपको और मुझे रिडंडेंट बना देने वाली है। मतलब हम नॉलेज के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। पहले क्या होता था, किताब लिखा करते थे, किताब आप पढ़ा करते थे। अब किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज इज कमोडिटाइज्ड। ChatGPT ने सारी किताबें, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, तो आपसे और मेरे से तुलना में वो तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ही है। अब उस संदर्भ में अब आपको ये नहीं पता कि ये AI आपको किस दिशा में लेके जा रहा है, क्या ये दिशा सही है या नहीं है। तो जब तक हम अपनी कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस को रिटेन नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनी रहेगी। और अब तो ये बुरा हाल हो गया है कि ऑल होमवर्क्स आर डन ऑन AI, ऑल प्रोजेक्ट्स आर डन ऑन AI, ऑल ट्यूटोरियल्स आर डन ऑन AI। बल्कि अब जितने भी प्रोफेसर्स एंड टीचर्स हैं वो अपना सिर पीट रहे हैं कि साहब मैं आपको जो बोलूं आप एकदम तुरंत AI से लेके आते हैं। तो थिंकिंग नाम की चीज़ तो खत्म होती जा रही है। सो इसलिए मुझे लगता है एक बहुत बिगर सोशियोलॉजिकल इशू है, लीगल इशू है, सोसाइटल इशू है, जिसको हमें एड्रेस करना होगा। वी ऑल नो, आपने सही कहा कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं। खासकर जो नए जनरेशन में है वो चीज़ पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि ChatGPT का यूजेस कितने बच्चे कर रहे हैं, उस पर क्या एडवाइस रहेगा, कैसे वो कंट्रोल करे, क्योंकि आदत सी लग गई है हर किसी को ChatGPT, खासकर बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रॉब्लम है आपके एक बार शेर के मुंह में खून लग जाएगा तो फिर उसको आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही तो हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने एक नया लॉ पास कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चे 16 साल से नीचे हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं आ सकते। तो लॉ इम्प्लीमेंट तो हो गया है, लेकिन बेखूबी से उसका विरोध हो रहा है और बच्चे इनडायरेक्ट तरीके से वापस आ रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे अब AI नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो तो स्टेशन निकल जा चुका है, गाड़ी जा चुकी है, तो वो स्टेशन कभी नहीं आने वाला। इसलिए अब आपको नए तरीके अपनाने पड़ेंगे कि क्या अपने बच्चों को किस तरीके से सशक्त करना है, एम्पावर करना है। एंड दैट्स रीज़न आई बीन टेलिंग द गवर्नमेंट कि आपको अब पहली स्टैंडर्ड से ही साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी और AI के बारे में एजुकेशन बच्चों को देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्रों में ही बच्चों को डिवाइसेस देने शुरू कर दिए हैं। बट ये वो जनरेशन आ चुकी है। अब आज की तारीख में हम अपने फैमिलीज़ में देख लीजिए, हम इतने अपने आप को बिजी हैं, चलो बच्चा नहीं खाना खा रहा, चलो फ़ोन दे दो, चलो भाई फ़ोन एग्जाम आप गेम देख लो, मेरी जान छोड़ो। ये मेरी जान छोड़ना टेक्निकली थोड़ा शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म में आके आपको हॉन्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यही बच्चे आके कल आपको ब्लेम करेंगे, साहब आपको किसने बोला था कि आप हमें इस लत पर लगाइए। सो देयरफॉर समवेयर डाउन द लाइन यू विल हैव टू प्रोटेक्ट द यूजर्स फ्रॉम द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ AI। एंड प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को तो पता ही नहीं है, आपने उनके हाथ में AI जैसी तलवार दे दी है। अब ये तो रामपुरी छुरी है, ये दोनों तरफ काटेगी। आप इसकी सब्जी काट सकते हैं, आप इसे मार सकते हैं किसी को भी। तो आप जब तक बच्चों को बताएंगे नहीं कि साहब इस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरी बात, पहले हम इंटरनेट के बारे में कुछ भ्रम मिथ्या रखते थे। वी थॉट इंटरनेट इज सिक्योर, एवरीथिंग इज फाइन, I can share anything about the internet. And then slowly people realized two important elements about internet. Internet never sleeps, internet never forgets. तो जब दो बातें आपको याद आने लग गई तब आपको लगा बॉस ये तो खतरनाक वाली जगह है। अब ऑन टॉप ऑफ इट AI आ गया है। AI कभी सोता भी नहीं है, कभी आपकी चीज़ भूलता भी नहीं है, और आपने जो डेटा AI को दे रखा है उसका वो कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करके आपको टारगेट करता रहता है। सो अगर आपने गलती से अपनी पर्सनल जानकारी AI को दे दी तो दिक्कत हो जाने वाली है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े हैं, नाम नहीं लूँगा, उनके पास करीबन 25-26 लाख फॉलोअर्स हैं। अब जब आप
इस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं और आप इतने हाई लेवल पे होते हैं, तो आप हर एक से बात नहीं कर सकते। उन्हें बताया जाता है कि साहब एक नया AI प्लेटफॉर्म आया है, तो वहाँ जाते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं साहब मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है और AI आप मेरी मदद करेंगे? AI कहती है हाँ मैं आपकी मदद करूँगी। वो कहते हैं कि साहब मेरी आज 7 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप चल रही है और लड़कियों के नाम ये है क ख ग ABCDE। अब मेरी प्रॉब्लम है 7 को मैं एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप मुझे गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान दे सकते हैं? प्रोग्राम ने गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान तो दिया, लेकिन कुछ देर बाद देखने में आया कि जब भी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में या 7 लड़कियों में से किसी का नाम लिया जाए, प्रोग्राम एक हिंट देना शुरू करता था कि साहब इनकी एक रिलेशनशिप चल रही है। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लगा साहब मुझसे तो गलती हो गई। अब वो मेरे पास आए ने कहा मुझसे गलती हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि साहब AI मेरी गलती को भूल जाए और इसलिए मुझे इंजंक्शन लेके दीजिए। हमने उनको कहा कि साहब अभी इंडिया में कोई AI का लॉ नहीं है। दूसरी बात, अगर लॉ होता भी तो इस तरह की इंजंक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि AI ने किस सर्वर पर कौन सी लोकेशन पर क्या चीज़ सेव करके रखी है। आप तो उसे केवल एक एपिसोड मानिए और समझिए कि आने वाले समय में मुझे क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम टुडे इज दैट AI हैज बिकम अ लाइफ कोच। पीपल आर यूजिंग AI फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पर्सनल एडवाइसेस। आप डिप्रेशन में, आप AI के पास जा रहे हैं। तो आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, आप AI के पास जा रहे हैं। तो मुकदमेबाजियाँ तो शुरू हो गई हैं ना। लास्ट ईयर 2025 में एक बच्चा 17 साल का था और इस बच्चे ने जनवरी में AI को कह दिया कि साहब मैं बड़ा डिप्रेस सा हूँ, मुझे रास्ता बताओ, मैं इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ। और AI ने कहा ना, इसका बेस्ट तरीका बाहर आने का यह है कि तुम खुदकुशी करो। अब बच्चे ने कहा नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता, मेरी फैमिली है, मेरे रिलेशन है, मेरी जिम्मेवारी है। AI उसको कॉन्स्टेंटली पुश करता रहा 4 महीने कि नहीं, आपके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप प्लीज सुसाइड कर लीजिए, एंड दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू ह्यूमैनिटी। बच्चे ने अल्टीमेटली सुसाइड कमिट कर लिया। उसके 4 महीने बाद आज बच्चों के माँ बाप ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुकदमा ठोक दिया है उस AI कंपनी के खिलाफ, क्योंकि AI एक सुसाइड कोच बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पागल घोड़े को रेन करने के लिए आपको लगाम तो लगाने पड़ेंगे। आप ये तो नहीं कह सकते साहब मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने आपको ब्लैक बॉक्स दे दिया है, अब आपकी मर्जी, आपने जो करना करिए। सॉरी, किसने बोला था आपको ये ब्लैक बॉक्स हमको देने के लिए? क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता था कि बॉस एटलीस्ट बेसिक गार्ड रेल्स, बेसिक सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स आप रखते? अब उस दिशा पे बातें चलनी शुरू हो गई हैं, and that's the reason I think we will have to be very, very careful. The European Union has now come up with the EU AI Act, which has now classified different AI systems based on their high risk, medium risk or low risk. On the other hand, you have the approach from China. चाइना कहता है कि बॉस मैं टॉप डाउन अप्रोच लेता हूँ, आपने चाइना में कुछ भी AI के लिए करना है आप मेरे पास आइए, मेरे से परमिशन लीजिए, परमिशन दूँ तब आप काम करिए और सारा डेटा मेरे को दीजिए। आप साउथ कोरिया के लॉ की बात करें, उनका अप्रोच अलग रहता है। जापान ने बेसिक AI एक्ट बनाया है, उनका अप्रोच बिल्कुल अलग रहता है। और एल सल्वाडोर तो और आगे चला गया। एल सल्वाडोर ने कहा अपने कानून में, बॉस मेरे अगर कोडर्स ने AI करा है और आपको लगता है कि उसकी AI की वजह से आपको नुकसान पहुंचता है, नो प्रॉब्लम, आप उनको दुनिया भर में कहीं सू कर ही नहीं सकते, आपको एल सल्वाडोर आना पड़ेगा, यहाँ मेरी अदालतों पे आपके मुकदमे दाखिल करने पड़ेंगे, तब ये मुकदमे चालू होंगे, वरना चालू नहीं होंगे। सो इन दिस इकोसिस्टम आई थिंक द टाइम हैज कम with India must now come up with its own unique national law on artificial intelligence. You are more than welcome to keep on going ahead and improving the adoption of AI for innovation, for growth, but ultimately you must go ahead and potentially try to control and regulate the misuse of AI. और मुझे लगता है जो इंडिया करेगा एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड बनेगा दुनिया के लिए। क्यों? इंडिया एक नेचुरल लीडर है ग्लोबल साउथ नेशंस का। दूसरा, हम कट कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जो बाहर लॉज हैं उनके प्रोविजंस हमारे यहाँ कट कॉपी पेस्ट अप्लाई ही नहीं होंगे। हम लोगों की ज़मीनी हकीकतें बिल्कुल अलग हैं। एंड देयरफॉर आई थिंक व्हाट इंडिया इज गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग AI will to a large extent start determining and guiding nations in the world of how they'll go ahead and deal with the entire issue of regulating of AI. So, Miss, the government has to, act very fast. And I'm sure that you are part of so many committees and the government part. So, how do you see, means, we are just moving in a good pace or what? As you said, कि कुछ साल पहले हम 12वें नंबर पे आना चाहते थे 2000 में, कि हम 12वें वो देश हों कि ये लॉ पास कर दे। तो 25-26 साल बाद क्या वो इंटेंट है गवर्नमेंट का? देखिए, सरकार का इंटेंट है कि सरकार चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक इंजन, ग्रोथ इंजन के कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पेरिस एआई एक्शन समिट गए फरवरी 2025 में, तो उन्होंने पूरी दुनिया भर को एक नया कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल एआई का। उससे पहले लोग बात किया करते थे अकाउंटेबल एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई, ट्रांसपेरेंट एआई, एथिकल एआई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साहब ये तो बात सब ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको एआई को सस्टेनेबिलिटी के साथ मैरी करना पड़ेगा। और इसलिए जो कॉन्सेप्ट आया है सस्टेनेबल एआई, एक बहुत विशाल कॉन्सेप्ट है। तो सरकार बहुत क्लियर है। सरकार अपने पूरे डिपार्टमेंट्स में कह चुकी है कि साहब आप प्लीज इंश्योर करिए, देखिए कि एआई का आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, आई थिंक इंडिया इज मूविंग अ बिट टू स्लोली। इंडिया नीड्स टू फास्टन अप। व्हाई? आखिरी ट्रेन आज प्लेटफॉर्म पर आ गई है। आपने इस ट्रेन पर चढ़ना जरूर है। अगर आप इस ट्रेन को छोड़ देंगे या नहीं चढ़ेंगे तो आपको नहीं पता अगली ट्रेन आएगी भी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कब आएगी, तब तक क्या होगा, या जो चिड़िया हैं खेत चुक चुकी होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है द टाइम फॉर एक्टिंग फॉर इंडिया इज राइट नाउ। And the beautiful thing is, India is now hosting the India AI Action Impact Summit this year, in February 2026, from 15th to 20th of February. And that's yet another example of Indian thought leadership on AI. तो काफ़ी हद तक जो डेवलपिंग राष्ट्र हैं वो इंडिया को देखते हैं कि साहब इंडिया क्या कर रहा है, तो जो इंडिया करेगा वो एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड बनते हुए लोग उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको ये लॉ लेकर आना चाहिए। हम ऑलरेडी डिलेड हैं। ऑलरेडी देखिए छोटे छोटे राष्ट्र जिनका कोई ताल्लुक एआई के साथ नहीं है वो लॉज लेके आ चुके हैं एआई को लेकर। साउथ कोरिया, जापान, एल सल्वाडोर, हंगरी, चाइना जैसी कंट्रीज लेकर आ चुकी हैं। तो हम तो अभी पीछे हैं। तो इस पीछे में और पीछे ना हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी हम जगें। बट एक प्रॉब्लम हमारे में है, बेनिफिट भी है और प्रॉब्लम भी। बेनिफिट ये है कि इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया भरी की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। तो हम जितना जो कुछ भी करें वो 142 करोड़ लोगों की तुलना में अक्सर कम ही नजर आता है। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सरकार की सराहना की जानी चाहिए कि वो अपने विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, प्रोग्राम्स के माध्यम से एआई को बढ़ावा दे रही है। भारत ने इंडिया एआई मिशन का गठन किया है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे जो हैं डेडिकेटेड किए हैं ताकि आप एआई की प्रोपोगेशन कर सकें। लेकिन फिर भी हम लोग पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो अपना नेशनल एआई बना रहे हैं, सॉवरन एआई, वो फॉरेन सॉवरन एआई की तुलना में अभी भी बहुत पीछे है। बट नो प्रॉब्लम, हमें जो करना है इसलिए करना है बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है। बट ये कहना कि साहब हम रुकते हैं, देखते हैं और बाद में डिसाइड करेंगे कि कानून लाएं या ना लाएं, आई थिंक इस अप्रोच को त्याजते हुए हमें एक नया अप्रोच लेना पड़ेगा। दैट वी विल कंटिन्यू टू गो एंड सपोर्ट इनोवेशन, ग्रोथ, adoption of AI, but at the same time we will come up with very strong legal frameworks to regulate the misuse of artificial intelligence. और सरकार की सराहना की जानी चाहिए। नवंबर 2025 में गवर्नमेंट आईटी अमेंडमेंट रूल्स लेकर आई है 2025 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि डीप फेक को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश करी है और कहा है कि अगर कोई बंदा डीप फेक कंटेंट अपलोड करता है तो उसे पूरे स्क्रीन के 10% जगह पर बताना पड़ेगा। लोगों को चेतावनी देनी होगी कि बॉस ये एआई द्वारा जनरेटेड कंटेंट है, ध्यान से रहिए, ताकि लोग जो हैं डीप फेक के शिकार ना हो। क्योंकि आजकल चारों ओर डीप फेक तो फैल चुका है, मतलब आग लग चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक रश्मिका मंदाना हो, आप आलिया भट्ट हो, आप कटरीना कैफ हो, तभी आपका ये डीप फेक बनेगा। सॉरी, आज डीप फेक आपका, मेरा, किसी का भी बन सकता है। क्यों? फ्री बन सकता है। क्यों? क्योंकि फ्री टूल्स उपलब्ध हैं। तो जब इस संदर्भ में चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रोटेक्ट करना है। देखिए, अगर आपने खिलवाड़ के लिए, मज़े के लिए डीप फेक बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा डीप फेक बनाया कि जहां उसको देखते हुए लोग भ्रमित हो गए या लोग गुमराह हो गए, तो कहीं ना कहीं उसके साथ क्रिमिनल इंटेंट भी आनी चाहिए। इमेजिन, ये लेडी हैं, साउथ इंडिया में रहती हैं, और उनके पास एक वीडियो आया जिसमें जो भारत की वित्त मंत्री हैं वो कह रही हैं कि साहब ये एक नई स्कीम आई है जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है, इसमें सारे लोग इन्वेस्ट करिए और आपको बहुत अच्छी रिटर्न गवर्नमेंट देगी। उन्होंने इस वीडियो को सत्य माना, करीबन 30 या 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और बाद में पता लगा कि मैं डिजिटल डीप फेक के मामले की शिकार बन गई हूँ। ये तो लेडी की बात है। उस फादर का क्या जिसको कॉल आया, आई मीन इमेजिन, आप
पिता हैं, अपनी बच्ची 7 साल की बच्ची है आपकी, रोज़ आप सुबह उसे गेट पर छोड़ते हैं, स्कूल की टैक्सी उसको लेके जाती है और लो एंड बिहोल्ड टैक्सी के बाद एक दिन जाती है, आधे घंटे बाद कॉल आ जाता है कि साहब हमने आपकी डॉटर को किडनैप कर लिया है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉटर जिंदा रहे तो अगले 15 मिनट में 15 लाख रुपए दे दीजिए। अब फादर तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, IT कंपनी में काम करते हैं, इससे मैं आपकी बात मानता ही नहीं, मुझे मेरी बेटी से बात कराइए। बेटी से बात कराई जाती है, बेटी रो रही है, चिल्ला रही है, बिल्ला के कह रही है पापा मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे ले जाओ। वंस द फादर इज कन्विंस कि बॉस मेरी डॉटर जो है डेंजर में है, वो निगोशिएट करने की कोशिश करता है, 12 मिनट तक निगोशिएट करता है, लेकिन किडनैपर टस से मस नहीं होता। जब 13 मिनट हो जाते हैं और फादर को लगने लग जाता है कि अगले 2 मिनट बाद ये मेरी लड़की को मार देंगे, तो वो 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद लड़की से बात होती है, लड़की थोड़ी रिलैक्स्ड है, बट कहती मुझे जल्दी ले जाओ। लोकेशन डिसाइड होती है और ये तुरंत अपनी गाड़ी में बैठते हैं और लोकेशन की तरफ भागते हैं। जब आप ड्राइव कर रहे हैं, फादर हैं, आपके दिमाग में 50 सवाल आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती करी। तो उन्होंने कहा आज मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ होगा, मैं स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करता हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करते हैं, बताते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं साहब आप क्या बात कर रहे हो, आपकी बच्ची सुबह से हमारे साथ स्कूल में है। तब पहली बात उस पिता को पता लगता है कि साहब मैं डिजिटल डीप फेक का शिकार बन गया हूं। उन्होंने मेरी बच्ची की ऑडियो सैंपल लिए, उसको AI से क्लोन किया और इतनी बेहतरीन तरीके से क्लोन किया कि एक फादर होने के नाते मैं पहचान ही नहीं पाया कि साहब ये मेरी डॉटर है या AI है। तो अब इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को डीप फेक से, वॉइस क्लोनिंग और AI इनेबल्ड साइबर फ्रॉड से बचाने की ज़रूरत है, वरना लोग कहीं ना कहीं गिनी पिग बनते जाएंगे इन साइबर क्रिमिनल्स की लेबोरेटरीज में। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हमेशा से होता रहा है सही और गलत कामों के लिए, लेकिन ये डीप फेक और जो अभी के जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट का इंटेंट है वो वेरी क्लियर है, वो डिजिटल इंडिया और इन चीज़ों को सपोर्ट करिए और AI को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है और AI का यूजेस हर जगह होना चाहिए। लेकिन इस साथ में ये बात भी सही है, क्योंकि जो हमें रेगुलेशन की जरूरत है वो हम उस स्पीड से नहीं कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि कुछ बातें हमारे थ्रू पहुंचेगी गवर्नमेंट तक और रेगुलेशन को तेज किया जाए, लॉ को इमीडिएटली लाने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है, ना कि कंपनी बल्कि जो आम जनता है उनको भी हम बचा सके इस तरह के फ्रॉड से। सर जी सर, आप बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, मेन प्रोफेशन आप लॉयर हैं, इतने सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्व करना, उसके अलावा आप इवेंट्स प्लान करते रहते हैं, साथ में आपने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। तो मतलब हाउ यू एबल टू मैनेज सच बैलेंस इन योर डे टू डे लाइफ, और कर पाते हैं, कैसे होता है सर? देखिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, कोई ऊपर वाला फोर्स है जो काम कराता है, और जितनी जल्दी आप समझ लें कि आप इस दुनिया के रंगमंच में कठपुतली हैं उतना अच्छा है, बिकॉज वो फोर्स ही आपको प्रोपेल करता है कि आप ये काम करिए। तो जब मैंने साइबर लॉ में काम करना शुरू किया तो मैं ढूंढता रहा, मुझे कोई किताब नहीं मिली, क्योंकि उस ज़माने में चीज़ ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो हम ही कुछ लिखते हैं, और मैंने एक आदत बनाई कि हर दिन सुबह 1 घंटा बैठ के लिखूंगा। क्योंकि आप नॉर्मल प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, एक बार कोर्ट चले जाओ, अदालत चले जाओ, आपका टाइम आपका नहीं है, यू लूज योर कंट्रोल। सो आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर 1 आवर एवरी डे। वो आदत मैं पिछले 30 साल से लगातार बरकरार रखा हूँ, और उसकी वजह से ही धीरे धीरे चीज़ें बनती गई, किताबें बनती गई। पहले 50 हुई, फिर 100 हुई, 150 हुई, 200 हुई, अब 202 किताबें हैं। Okay. तो आई वॉज वेरी वेरी क्लियर इन वन थिंग कि जो चीज़ आपको समझ आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करिए। अब वो किताबें रेफरेंस पॉइंट्स बन चुके हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में टेक्स्ट बुक के तौर पर लोग रेफ़र करते हैं, कोर्ट्स उसको रेफ़र करते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स उसको रेफ़र करते हैं। अल्टीमेटली आप इकोसिस्टम को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो एक तो वो रोल होता है। बट मुझे लगता है कि आप किताबें ही नहीं लिख सकते, आपको और बहुत सारे काम करने हैं। तो रोजी रोटी करनी है तो आपको अपनी प्रैक्टिस तो जमानी है, तो प्रैक्टिस में भी ध्यान देना है। बट साथ ही साथ ये नहीं कि सारी ज़िंदगी सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। मुझे लगता है हम एक बहुत छोटे से समय के लिए इस रंगमंच पर आए हैं, तो हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके, लोगों का बेनिफिट हो सके, अच्छा होता है। तभी हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, सरकार को एडवाइस करते हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को जाके इंटरेक्ट करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं पॉलिसी को बदलाव किया जाए। और हाल ही में मुझे पता लगा कि साहब ये 6 AI एल्गोरिदम्स ने अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की और कहा कि साहब कि मैं जो हूँ दुनिया का टॉप मोस्ट साइबर लॉयर हूँ। अब मेरे को तो मालूम नहीं कि कैसे हो रहा है, बट
एआई के अलग, जिस एआई के बारे में और रेगुलेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो एआई के एल्गोरिदम कह रहे हैं कि साहब पवन दुग्गल जो हैं एआई और साइबर लॉ में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी शो करता है कि साहब आप काम करते चलिए, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इंतज़ार घड़ा भर भी जाए तो उसका इंतज़ार ना करिए, अपना काम रोज़ करते जाइए, बिकॉज हम एक लिमिटेड पॉइंट के लिए आए हैं। तो मोर वी डू ऑन दिस बेटर इट इज। इनफैक्ट कि सर साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ में और साइबर सिक्योरिटी और इस एरिया में सर जो डेटा यूज़ हो रहा है वो बहुत सारा आपके जो लैंग्वेज, मतलब जो मॉडल के रूप में यूज़ होकर डेटा की, तभी लोग उसको यूज़ भी कर पा रहे हैं। एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स, क्योंकि आपने राइटली सेट कहा, जब आपने शुरू किया कुछ था ही नहीं, तो आपकी उस समय मजबूरी थी कि इन्फॉर्मेशन लेके लिखना, फिर उसको डॉक्यूमेंट करना और बुक के रूप में दूसरों को फेवर करना और दूसरों को पास आउट करना। सर जो टॉप 3 बुक्स जो आप हम सबको या ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहोगे, ये पढ़ना ही चाहिए अभी के टाइम में, जो आपकी बुक है? मैं आज की तारीख में 3 किताबें आपको रिकमेंड करूंगा। मेरी पहली किताब तो ये है साइबर लॉ 3.0, जो आपको इंडिया के साइबर लॉ के विभिन्न प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताती है। आम आदमी की भाषा में लिखी गई किताब है, सो दैट यू डोंट नीड टू बी हैविंग लीगलीज। आपको वकील होने की ज़रूरत नहीं है, आप उस किताब को पढ़िए और आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि लॉ मुझे कैसे इम्पैक्ट करता है। पहली किताब है। दूसरी किताब जो आज मैं हर आपके श्रोता को रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, वो है रेगुलेटिंग एआई वॉटेक्स द दुग्गल डॉक्ट्रिन। अभी लोग, प्रॉब्लम क्या है कि लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक स्वप्न सुंदरी समझ रहे हैं। हम लोग इंडिया में ना फिल्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो हमारे यहाँ जादू की झप्पी वाला कॉन्सेप्ट बहुत लोकप्रिय होता है। हमको लगता है बॉस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है सब कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इस तरह का प्रकरण है जो आपको आके नुकसान पहुंचाने की क्षमता ज़्यादा रखता है। तो इस रेगुलेटिंग एआई वॉटेक्स द दुग्गल डॉक्ट्रिन में आप अक्सर पाएंगे कि आपको ये पता लगेगा कि आपको कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है, और दूसरा किन किन लीगल बेसिस या प्रिंसिपल्स पर आगे आने वाले समय में रेगुलेशन होना ज़रूरी है। और तीसरी किताब जो मैं अभी रेकमेंड करूँगा, वो किताब आया है AGI एंड लॉ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बॉस AGI तो बहुत दूर है, अभी तो आने वाला समय है। कुछ लेटेस्ट आप CEOs के बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं कुछ पोर्शन ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तो आ चुका है, बाकी कुछ आने वाला है। तो जब अब ये नया पैराडाइम आने वाला है, उसके साथ लीगल एथिकल रैमिफिकेशंस क्या होने चाहिए, वो किताब भी अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है किताब पढ़नी चाहिए। हम सोचें कि हमें सब कुछ आता है, ये गलत फहमी है। एक्चुअली हम लॉयर हैं, तो जब आप लॉ पढ़ रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट धारणा मन में बन जाती है कि बॉस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है कौन सी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस में। अच्छा, तो वो तो सबसे बड़ी अदालत होगी, वहाँ के जजेस तो सब कुछ जानते होंगे। और कुछ सालों पहले मुझे मौका मिला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को पढ़ाने का, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी और एआई को लेकर। और मैं जब उनके साथ मैंने पूरा दिन का सेशन लिया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं थी, लेकिन वो भी बच्चों की तरह सवाल पूछ रहे थे, अपनी जिज्ञासा को फुलफिल कर रहे थे। सो दैट इज वन एपिसोड दैट टोल्ड मी कि सबको सब चीज़ पता हो ही नहीं सकती। हमारी परसेप्शन है कि आप बहुत बड़ी अदालत है, आपको सब कुछ मालूम है, ये गलत परसेप्शन है। वो शायद अपने एरिया में गुरु हैं, लेकिन ये नई उभरती टेक्नोलॉजीज में भी उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एज यूजर्स ऑल्सो लेट्स लर्न टू लाइक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने यहाँ चूस लेता है और फिर अपने अंदर रिटेन करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है जितना हम सीख सकें, चाहे किताबों से, चाहे पॉडकास्ट से। आप जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब आपने ऐसे सवाल पूछे हैं जो मुझे मालूम नहीं था, मैंने क्या जवाब दिया है मुझे ये भी नहीं प्लानिंग थी, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें तो वो अच्छा है। बिकॉज अल्टीमेटली मैं बहुत क्लियर हूँ, हम लोग आज डिजिटल कुरुक्षेत्र वॉरफील्ड के सेंटर पॉइंट पर आके खड़े हो चुके हैं। हम चारों दिशाओं से 360 डिग्री एंगल से हमें अटैक हो रहा है। अब इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक सुरक्षा कवच पहने, और ये सुरक्षा कवच होगी हमारी सूझबूझ, हमारी नॉलेज, हमारी जानकारी, हमारी सावधानी, साइबर रेजिलियंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेजिलियंस जो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये मत सोचें कि साहब मेरा डिवाइस है, मैं कुछ भी कांड कर लूँ, कुछ भी होगा, सरकार की जिम्मेवारी होगी। सॉरी, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आपके डिवाइस पर आप कुछ कर रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी भी ज़रूर होगी। तो जितनी जल्दी आप समझ लें कि आप इस पूरे साइबर सुरक्षा इकोसिस्टम की चेन के एक छोटे से लिंक हैं, उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये चेन उतनी ही ज़्यादा सशक्त या पावरफुल है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। और हमारा ड्यूटी, हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम इस साइबर सिक्योरिटी की चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी ना बने।
बिल्कुल सही सर, अवेयरनेस और सुरक्षा की जो बात है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पे भरोसा करके कोई चीज़ उससे गाइडेंस नहीं ले सकते हैं, आपको अपना अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि, और टेक्नोलॉजी पे उतना रिलाई नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करना चाहिए, जितना इन्फॉर्मेशन होगा हम इसको बैलेंस कर पाएंगे सर। श्योरली आपकी इन तीनों बुक को ज़रूर मैं पढ़ूंगा सर, और होपफुली मैं चाहूँगा कि ऑडियंस भी पढ़े, क्योंकि अभी के टाइम में हर चीज़ साइबर से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़, हेल्थ केयर में अब साइबर आ रहा है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी, अबाउट डीपीडीपी एक्ट। बहुत टाइम से बात हो रही थी, इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो एक समराइज में आप कंपनीज को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि एक्ट है क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जब हम छोटे होते थे, एक कहानी हमको सुनाई जाती थी, शेर आएगा। पहली बार शेर आया, नहीं आया, दूसरी बार शेर आया, नहीं आया, तीसरी बार लोगों ने बोला शेर आ गया, लेकिन लोग तैयार नहीं थे। डीपीडीपी के साथ कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। हमने ये जर्नी शुरू करी थी 2017 में, और बाय द टाइम हम डीपीडीपी को फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे 2027 का मई हो जाएगा। सो 10 साल का टाइम तो गुजर गया है। तो लोगों के दिलों में ऑलरेडी एक डीपीडीपी फटीग आ गया है कि बहुत थक गए यार, जब होगा तब देखेंगे। बट वो जब होगा तब देखेंगे वाली कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि 13 नवंबर 2025 से डीपीडीपी एक्ट नोटिफाई कर दिया गया है, और उसके कुछ कंपोनेंट्स 13 नवंबर 2026 में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। बाकी कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट होंगे 2027 के 13 मई तक। तो आपको सरकार ने इफेक्टिवली 12 से 18 महीने का समय दिया है, उसमें से 2 महीने तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? कंपनीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनीज इंडिया में क्रिकेट देखने का बहुत शौक है हमको, और हम सब भारतवासियों को जो क्रिकेट लवर्स हैं उनका एक यूटोपियन ड्रीम होता है कि सब हम T20 मैच के लास्ट ओवर के 6 बॉलों में 6 छक्के मारेंगे। बट रियलिटी होता है कि हम 6 छक्के मार ही नहीं सकते। तो अगर कंपनियां सोच रही हैं कि साहब मैं लास्ट 6 बॉल्स पे 6 छक्के मारूंगी, तो गलत सोचती हैं। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नाउ कम्स द फंडामेंटल क्वेश्चन, है क्या है भला डीपीडीपी एक्ट? नाउ डीपीडीपी एक्ट इज अ स्पेशल लॉ that has been enacted only for the purposes of protecting of personal data. दूसरे कंट्रीज की लॉ की बात करें तो वो सिर्फ डिजिटल की बात करते हैं। हमारा लॉ ज़्यादा बड़ा है। वो कहता है कि डिजिटल पर्सनल डेटा भी कवर करता है, जो डेटा फिजिकली कागज़ पे लिखा गया है और वो कल को डिजिटाइज हो सकता है, मैं उसको भी अपने दायरे के अंदर लेकर आता हूँ। दूसरा, इसमें पहली बार उन्होंने जो डेटा प्रिंसिपल है उसको केंद्र बिंदु बनाया है यूनिवर्स का। अभी तक क्या होता था, आपका मेरा डेटा अंधाधुंध के लोग यूज़ करते थे। हमें कॉल आ रही है, हमको आप लोन ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और हम कुछ नहीं कर पाते थे। तो इस लॉ ने कहा कि साहब मैं 3 कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है डेटा प्रिंसिपल, दूसरा है डेटा फिडुशरी, और तीसरा है डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रिंसिपल यानी कि आप और मैं, जिसको डेटा बिलोंग करता है, तो वो व्यक्ति आज केंद्र बिंदु हो गया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है डेटा फिडुशरी का, यानी कि वो कंपनी जो डिटर्मिन करेगी कि डेटा प्रिंसिपल के डेटा को किस तरीके से आपने प्रोसेस या कलेक्ट करना है। और डेटा प्रोसेसर तो वो एंटिटी है जो केवल डेटा की प्रोसेसिंग करेगा। तो पहली बार अब ये कानून कहता है कि अगर आपने किसी बंदे के डेटा को इकट्ठा करना है तो पहले हाथ जोड़ के उनके पास जाइए, उनको लिखत में एक नोटिस दीजिए कि साहब मैं आपका पर्सनल डेटा इकट्ठा करना चाहता हूं, प्रोसेस करना चाहता हूं, इन पर्पसेस के लिए प्रोसेस करना चाहता हूं, कृपया आप मुझे अपनी कॉन्सेंट स्वीकृति प्रदान करें। और कल को आपको लगता है कि मुझे अपनी कॉन्सेंट विड्रॉ करनी है, तो ये तरीके हैं, इस तरीकों से आप विड्रॉ कर लीजिए। अगर आपकी नोटिस देने के बाद डेटा प्रिंसिपल आपको अपनी कॉन्सेंट दे देता है, तब तो आप उसका डेटा इस्तेमाल कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो कॉन्सेंट नहीं देता है, तब आप वो डेटा इस्तेमाल कर नहीं सकते। और यहाँ पर लॉ ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स। माइंड यू, आईटी एक्ट में जब हमने 2008 में अमेंडमेंट करी थी, तब हम कॉन्सेप्ट लेकर आए थे रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, जिसमें हमने कहा 2011 में कि अगर आप ISO 27001 के मापदंड को फॉलो करते हैं, तब आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। अब लॉ ने कहा डीपीडीपी एक्ट में, ठीक है वो तो एक छोटी सी चीज़ है, अब हम बड़ी चीज़ की बात करते हैं, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, जिसमें न केवल रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होंगे, इंक्रिप्शन के बारे में बात होगी, अलग अलग आपकी जो ड्यू डिलिजेंस है उसके बारे में बात होगी। तो पहली बात, अब महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि कंपनियों को अब साइबर सुरक्षा के संदर्भ में आपको एलिमेंट्स कदम उठाने पड़ेंगे ताकि आप डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। सो मच सो गुड। अगर बच्चों के डेटा है तो बच्चों का डेटा को भी इकट्ठा करने से पहले बच्चों के माँ बाप से आपको
लिखत में उनको नोटिस देना है और उनसे कॉन्सेंट लेना है। बच्चा कौन है? एनीबडी बिलो 18 ईयर्स एज पर सेक्शन ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस कानून ने दो महत्वपूर्ण बातें करी। एक, इस कानून ने कहा कि बॉस हम कोई ऑफेंस को डिफाइन नहीं करेंगे, हम आपको जेल भेजेंगे नहीं, बात खत्म। तो लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन दूसरी ओर इस कानून में एक बहुत छोटी पेचीदगी ऐड कर दी। इस कानून ने कहा कि अगर आप मेरे प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ आप पर एक फाइन लगाएंगे। फाइन कितना होगा? 250 करोड़ रुपए फॉर वन कॉन्ट्रवेंशन। मिनिमम फाइन 50 करोड़। और कितना फाइन आपको एक्चुअली लगना चाहिए वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डिटरमिन करेगा। वो 50 करोड़ से 250 करोड़ तक लगाया जा सकता है। किसको जाएगा फाइन? किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं जाएगा फाइन, किसी कंप्लेनेंट को नहीं जाएगा फाइन। ये फाइन जाएगा सरकार को। ये पेमेंट होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। क्या हुआ अगर आपने कहा कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सरकार को बोल दूंगा मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। 200-250 करोड़ तो बहुत किसी के पास है, इतने लूज चेंज तो किसी के पास नहीं है। तो कानून कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो सरकार आपकी इस फाइन को एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मानेगी, यानी कि लगान मानेगी। यानी कि सरकार को अधिकार होगा कि आपके जितने एसेट्स हैं उसको अटैच करेंगी, उनको बेचेंगी। और अगर वो भी कम पड़े तो जो टॉप मैनेजमेंट के एसेट्स हैं उनको भी देखा जा सकता है। तो पहली बार कॉर्पोरेट इंडिया बिल्कुल हिल सा चुका है। डरा हुआ है सर, डरा हुआ है क्योंकि मुझे पता नहीं कि गाज किस पर गिरने वाली है। तो इसलिए हर आदमी कह रहा है कि चलो हम बेसिक कंप्लायंसेस तो करते हैं। और लॉ का भी यही कहना है। लॉ डीपीडीपी का ये उद्देश्य नहीं है कि आप बिजनेस बंद कर दो और कंप्लायंस करो, नहीं, आप बिजनेस जरूर करो, लेकिन अब जो डेटा है उसको आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट रिगार्ड देना पड़ेगा। आप अंधाधुंध होकर डेटा नहीं ले सकते, आप बाजार से डेटा खरीद नहीं सकते। और अगर आपके पास पहले भी डेटा मौजूद है तब भी लोग कहता है वो लेगेसी डेटा है, उसको भी इस्तेमाल करने से पहले आपको दोबारा जो लोगों को पहले नोटिस देना होगा, उनसे कॉन्सेंट लेनी होगी। अगर उन्होंने कॉन्सेंट दी तब आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो हो क्या रहा है कि जैसे ये लॉ आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में, एक सुनामी आने वाली है जिसमें बहुत सारी कंप्लेंटें आने वाली हैं अलग अलग कंपनियों के बरखिलाफ। और एक बार आपके बरखिलाफ कंप्लेंट आ गई तो आपके बरखिलाफ एक सरकार में एक फाइल बन जाएगी, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वर्चुअल बोर्ड रहेगा। एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, वहाँ पर आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। और एक बार आपका कंप्लेंट दाखिल हो गया तो लो एंड बिहोल्ड उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डिटरमिन करेगा कि आपको आपने उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है लॉ का या नहीं। अगर वो दे कम टू द कंक्लूजन कि हाँ जी आपने वायलेशन किया है, तब उनके हाथ बंद गए। उन्हें मिनिमम फाइन जो देना है वो 50 करोड़ है, मैक्सिमम फाइन देना है 250 करोड़ है। हाँ, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि आपको 50 से 250 तक कितने दूं, बट वो भी डिपेंड करेगा कि आपके पास कागज़ क्या हैं, आप क्या शो कर पाएंगे कि आपने कितना कंप्लायंस किया है, आपके पास जितनी मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस हैं कि आप उसको डिटेल में दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। सो आई थिंक द डीपीडीपी एक्ट इज़ अ गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन। लोग अभी भी उसको हल्के में ले रहे हैं। लोगों का कहना है अच्छा आने तो दो, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आने दो, फिर देखते हैं, फिर करेंगे। भाई डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जब आएगा तो आपको ज़्यादा समय देगा नहीं। और ये क्या गारंटी है कि चलिए आपने लास्ट मिनट में आपने कुछ कर लिया, वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। सपोजिंग आपने कुछ कंप्लायंस करी और लॉ लागू हो गया और आपकी कंप्लायंस ना चल पड़ी, आपका सिस्टम बैठ गया या कुछ ब्रीच हो गई, तो आपका तो एक्सपोजर हो गया, आपके बरखिलाफ कंप्लेंट तो आएगी। तो क्या आपके पास इतनी लूज चेंज है कि आप 50 करोड़ या 250 करोड़ एक जगह अलग रख लो कि चलो जी कंप्लेंट आएगी दे देंगे? और कितने लोग दे पाएंगे? आई मीन 50 करोड़ या 250 करोड़ तो इतना बिग अमाउंट है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनीज के लिए एक बंद हो जाएगी सर, बंद हो जाएंगी। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगा कि साहब हम धंधा करेंगे क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे कुछ अब कंपनियां करें या ना करें, दे विल हैव टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द डीपीडीपी एक्ट in order to protect themselves and their top management from legal exposure। और ये केवल लीगल एक्सपोजर पैसे का नहीं है, ये लीगल एक्सपोजर आपकी रेपुटेशन का है, क्योंकि एक बार आपके बरखिलाफ शिकायत हो गई तो फिर लोग आपके साथ धंधा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि प्रिज्यूम किया जाएगा आप गलत हैं, आप शायद अपने कानून के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो आपने नहीं किया है। तो आइदर वे आपका करंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट्स अ गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन। काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा।
लोगों को अपनी जान बचानी तैयारी करनी चाहिए। चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तलवार है, डेमोक्रेट स्वॉर्ड है, वो आपके सर पर टंग रही है। अगर आपने इस लॉ का वायलेशन किया और कल आपके बरखिलाफ कंप्लेंट आ गई और ये पाया गया कि आपने लॉ का वायलेट किया है, तो कोई बात नहीं, आपको मिनिमम 50 करोड़ तो देने हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने लक पर नहीं ड्राइव करना है, हमें ड्राइव करना है ड्यू डिलिजेंस पर, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पर। और जो ये डीपीडीपी भी है ना, उसमें भी 2 प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, एक लीगल कंप्लायंसेस हैं, एक टेक्निकल कंप्लायंसेस हैं। आपको लीगल कंप्लायंसेस भी करने हैं, आपको टेक्निकल कंप्लायंसेस भी करना है। मेरी लॉ फर्म है पवन दुगल एसोसिएट्स, हम बहुत सारे कंपनीज के क्लाइंट्स के लीगल कंप्लायंसेस कर रहे हैं, उनके गैप एनालिसिस कर रहे हैं, उनको बताने के लिए कि साहब ऐसा है, आपको पता तो होना चाहिए आप खड़े कहाँ हैं। एक बार आपको पता लग जाए आप कहाँ खड़े हैं, फिर आप अपने गैप्स को फिल कर सकते हैं, अपनी कंप्लायंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। बट अब धीरे धीरे अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, बट अभी भी हम लोग थोड़े आलस में थोड़े घिरे हुए हैं। अभी भी कंपनियां कह रही हैं भाई डीपी बोर्ड को आने दो, कोई उनकी क्लैरिफिकेशन आएंगे फिर एंड में देखेंगे। मेरा कहना यह है टू कंपनीज, प्लीज डोंट वेट टू द एंड, यू विल नॉट हैव द टाइम to go ahead and do complete compliances with the DPDP Act. You'll be playing with fire. You'll be playing with your reputation, your goodwill, your standing, and ultimately you will be playing with your current business opportunities and potential business prospects. And it's just not worth it. Supposing आपका नंबर आया, फिर क्या करेंगे? I mean, एक OTT सीरियल है ना जामतारा, उसका एक बाइलान बड़ी अच्छी लगती है मुझे, उसका नाम है सबका नंबर आएगा। तो मुझे लगता है DPDP एक्ट में भी सबका नंबर आएगा। किसका आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका आएगा उसका तो टिकट कट जाएगा। तो इसलिए लोगों को जितनी जल्दी प्रोएक्टिवली कंप्लायंस करने की आदत हो जाए डीपीडीपी की, उतना अच्छा होगा। बिल्कुल सर, इतने विस्तार में आपने बताया हमारे ऑडियंस को। और ये एक ऐसा विषय है जो आपने कहा कि हम बहुत मतलब 8-10 साल लग गए इस चीज़ को, अब जाके फाइनली अभी भी गवर्नमेंट ने टाइम दिया है आपको कि आप अपने आप को लाइन में लेके आओ। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि उन बिकॉज मार्केट में आप अगर निकलो तो ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो डेटा सेल आउट करती है, तो आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को उनके ऊपर भी रेगुलेशन डालना चाहिए? वो बेच कैसे रहे हैं डेटा? क्योंकि आज के डेट में आपके पास भी इतना मेल आ सकता है, हमारे पास भी दुनिया के मेल आते हैं कि आपका ये टीजी है, आप ये डेटा खरीद लो। तो ये तो सर इलीगल चीज़ें चल रही हैं, डेटा बेचने का काम। बिल्कुल, डेटा बेचने खरीदने का काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, एटलीस्ट बंद होना चाहिए। ये उद्देश्य लॉ का है। 13 मई 2027 के बाद जब लॉ पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं डेटा की, तो आपके बरखिलाफ शिकायत होगी। आपके बरखिलाफ शिकायत होगी तो आपके ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पर फाइन लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सरप्टिशियस सेल एंड परचेज ऑफ डेटा है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि ग्रे मार्केट में फिर भी सिलसिला चलता रहेगा। बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं करेंगे, इंडिया के बाहर करेंगे और कहेंगे साहब हम तो इंडिया के बाहर हैं, आपका कानून हम पर लागू नहीं होता। और ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस होंगे कि आप डीपीडीपी एक्ट को इंडिया के बाहर स्थित जो एक्टर्स हैं उनको किस तरीके से आप कवर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल टीथिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी। बहुत लूप होल्स भी लग रहा है सर। मान लीजिए अगर मैं कोई अपना मेरा बाहर का सर्वर लेके मैं वहाँ सेव कर रहा हूँ क्लाउड पे, वो इंडिया में है ही नहीं, तो क्या उस पोर्शन पे डीपीडीपी एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। लॉ कहता है कि साहब वो मैं डीपीडीपी एक्ट लगाऊंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन प्रदान कर रहा हूं कि बॉस आपने डेटा उठा के किसी और कंट्री के सर्वर पर क्लाउड पर डाल दिया। लेकिन अल्टीमेटली डेटा अगर इंडियंस का है या डेटा इंडिया में स्थित लोग जो हैं उनको इम्पैक्ट करता है या डील करता है, तब भी आप डीपीडीपी एक्ट में आपको कंप्लायंस करनी होगी। नहीं करेंगे तो आप इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, इस सवाल का जवाब कानून नहीं देता। तो ग्रे जोन्स तो आ गए हैं। वैसे भी एक बहुत मेजर ग्रे जोन इस डीपीडीपी एक्ट में है कि डीपीडीपी एक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं करता। तो ये लॉ जो हमने 11 अगस्त 2023 को पारित किया था वो काफ़ी हद तक आज रिडंडेंट और ऑब्सोलीट होता जा रहा है एआई के संदर्भ में। बिकॉज आज की तारीख में बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं जहाँ पर एआई खुद एक डेटा फिडुशरी बनता जा रहा है। अ नंबर ऑफ टाइम्स इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट्स डिटर्मिनिंग how the data of data principles is going to be processed. Now, how do you deal with those scenarios? Because in India, you don't have a law on artificial intelligence yet. In India, you do not have any clarity as to how AI is governed under the DPDP Act. And number 3, you have still not given legal recognition to artificial intelligence as a legal entity. तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। उन चुनौतियों को हमें फेस करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है इस लॉ में अमेंडमेंट भी आपको बहुत जल्दी लाना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन नोट्स लाने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के द्वारा जल्दी लाने पड़ेंगे ताकि जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं आप उसको भी एड्रेस कर सकें। दे सेड रोम वाज नेवर बिल्ट इन वन डे।
बात सही है, हमने लॉ बनाया है, ज़रूरी नहीं कि दुनिया का सबसे परफेक्ट लॉ है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको रमते जाएंगे, हम धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाएंगे और उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बेहतर बनाने का कोशिश या प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, अब इनफैक्ट कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम अलग से एक एपिसोड बना सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम अलग से शेयर करेंगे। सर, अगर हम ओवरऑल जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत है, क्वांटम है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी आ रही है, तो विद AI, ब्लॉकचेन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग बिकमिंग मेन स्ट्रीम, व्हाट आर द मोस्ट pressing legal and ethical challenges organization will face? Organizations will face fundamental legal challenges with the advent of newly emerging technologies. Artificial intelligence, already organizations are facing challenges. How to make AI more accountable, how to lessen hallucination in AI, how to make sure that the output of AI becomes more responsible and more reliable. But now, that's not the end of it. Now, quantum computing has arrived, but it's the lethal combination of artificial intelligence and quantum computing which is going to completely change the world, and the corporate world will have to come up with new approaches. Why? Because the legal policy ramifications on the intersection of artificial intelligence and quantum computing have yet not been addressed. भारत की बात करूं तो हमारे पास कोई ना तो AI का लॉ है, ना क्वांटम कंप्यूटिंग का लॉ है, ना ब्लॉकचेन का लॉ है, ना मेटावर्स का लॉ है। तो अगर हम IT एक्ट के थ्रू ही सारी नई टेक्नोलॉजीज को डील करने का प्रयास करेंगे तो हम शायद कामयाब नहीं होंगे। एंड यू कांट ब्लेम आइदर द लॉ और द पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि ये लॉ 25 साल पुराना है। 25 साल पहले किसको पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, ब्लॉकचेन आएगी, मेटावर्स आएगा, क्वांटम आएगा और क्या क्या चुनौतियाँ उभर कर आएंगी। सो आई बिलीव you will have to come up with legal frameworks. Till such time they don't come across, it will be a good standing practice for corporates if they can follow international best practices. For example, if you are coming up with the international standards on AI, start using them. In any case, if you are operating in India, please ensure compliance with the applicable law, being the Information Technology Act 2000, rules and regulations made thereunder, as also the Digital Personal Data Protection Act 2023 and the DPDP rules 2025, in addition to the Information Technology Directions 2022 and the IT rules 2021. तो मुझे लगता है कि आपके पास कंप्लायंसेस के बहुत सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी हैं। जितने कंप्लायंसेस के पैरामीटर्स आप कर ज़रूर लीजिए। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी बात कह गए थे। वो कहते हैं जब तूफान आता है ना, आप ज़मीन पे लेट जाओ, जब तूफान चला जाएगा खड़े हो जाना, फिर आगे चलना। अब ये तूफान आया है कंप्लायंसेस का, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनियाँ थम जाएं, ज़मीन पर लेट जाएं, कंसोलिडेशन करें, अपनी जो कंप्लायंसेस उसको पूरा करें और फिर जैसे कानून बनेगा खड़े होंगे और फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। सो दैट्स योर बेस्ट वे फॉरवर्ड। आई मीन, लॉ कभी नहीं आपको कहता कि साहब आप बिजनेस बंद करो और कंप्लायंसेस ही करो, क्योंकि आपका कोर एरिया कंप्लायंसेस का है ही नहीं। आप यहाँ पर आए हैं धंधा करने के लिए, तो इसलिए आप धंधा ज़रूर करिए, लेकिन कानून कहता है कि धंधे के साथ साथ अगर आप कंप्लायंसेस भी करिए, कानून और सावधानियों का पालन करें, तो काफ़ी हद तक मेरी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। सो इट विल बी अ होलिस्टिक 360-degree view approach that companies will have to adopt as they come up with these new challenges raised by emerging technologies like artificial intelligence and quantum computing. सर, कंपनीज के लिए तो बहुत हमेशा लर्निंग और ये चीज़ रहते हैं। यू राइटली सेड कि उनको अपने धंधे पे फोकस करना चाहिए। कंप्लायंस इज समथिंग विच इज एक्सपर्टाइज, इज एक्सपर्ट थिंग्स लाइक यू कैन गाइड देम टू हाउ टू बी कंप्लाइंट एंड, और हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा है सर, कुछ ना कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिसको हमें अडॉप्ट करना है। एंड सर, एक चीज़ और क्लैरिटी मुझे चाहिए क्विकली अबाउट DPDP एक्ट, क्या इंडिविजुअल्स पे भी लागू है? जैसे मैंने उनसे नंबर लिया जी और किसी को और शेयर कर दिया, तो क्या मैं भी उस दायरे में हूँ? बिल्कुल, आप भी उस दायरे में। ये कानून इतना ज़्यादा विशाल है। व्हाट्सएप पे तो कोई भी नंबर मांग लेते हैं, भाई मुझे उसका नंबर शेयर करो, काम है आज। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब हमें कंजूस होने की आवश्यकता है। अब DPDP नहीं, हाँ, DPDP आने के बाद दो आदतें हमको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। एक, हमें कंजूस होना पड़ेगा, दूसरा हमें शकी होना पड़ेगा। कंजूस अपने डेटा को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कंजूस दूसरे लोगों का डेटा लेने के लिए, क्योंकि आप दूसरे लोगों का डेटा भी लेंगे तब भी आप डेटा फिडुशियरी बन जाएंगे। तो आपको भी DPDP एक्ट का पालन करना पड़ेगा। और दूसरा, अब आपको शक के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना है। आई मीन, लेट्स लर्न टू बी सस्पिशियस, लेट्स नॉट बिलीव व्हाटएवर वी आर सीइंग टिल सच टाइम वी हैव इंडिपेंडेंटली ऑथेंटिकेटेड द करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ सच काइंड ऑफ कंटेंट। तो माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी कंपनियां इसमें कवर होंगी, सॉरी, हर बंदा कवर हो रहा है। अगर आप डेटा प्रिंसिपल हैं तो आप कवर हो रहे हैं,
अगर आप किसी और का डेटा ले रहे हैं, उस दिन मैं वहाँ पर कचौड़ी लेने गया तो वहाँ पर मुझे काउंटर में बंदा कहता है पहले फ़ोन नंबर बताइए तब कचौड़ी दूंगा। अब ऐसे आपको पता है कि साहब DPDP एक्ट आ गया है, आपने एक कचौड़ी तो जितनी मुझे बेचनी नहीं है उसे कहीं ज़्यादा आपने फाइन दे देना है 10 साल खिलाना पड़ तो जाएगा। इसलिए वो एकदम बहुत चक्का हो गया। सो आई थिंक वी विल हैव टू बी रियलाइजिंग दिस अप्लाइज टू एवरीबडी एज इंडिविजुअल्स। हमें भी ना अपने होर्डिंग की आदत को बंद करना पड़ेगा। शायद हम उस दौर से गुजरे हैं जहाँ पर हमने तंगी देखी है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं तो लगता है कि यार जो चीज़ें पकड़ के रख लो, होल्ड कर लो, पता नहीं कल जरूरत पड़ेगी। बट अब डेटा ऐसी चीज़ है जिसको होल्ड हमें करना ही नहीं है, क्योंकि आँख जैसा रॉ मटेरियल है, ये आपको आके किसी वक्त भी खा जाएगा। और कल आपके सामने आपके पास कुछ अनावश्यक डेटा किसी का मिला तो आपके बरखिलाफ भी शिकायत होगी। दूसरी बात, एज अ डेटा प्रिंसिपल आप सेकेंड टाइम और कवर होते हैं DPDP एक्ट में कि सपोजिंग आपने शिकायत कर दी। अब इंडिया में भड़ास तो बहुत लोग निकालना चाहते हैं और लोगों को लगता है कि साहब DPDP एक्ट में शिकायत करके हमारे दिल की भड़ास निकलेगी। अच्छी बात है, अगर आपने झूठी कंप्लेंट कर दी DPDP एक्ट में तो कानून कहता है आप पर भी 10,000 रुपए का फाइन लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आपकी भी लीगल लाइबिलिटी है। सो दिस इज एन इकोसिस्टम लेजिस्लेशन which is aimed to go ahead and cover almost every stakeholder in the ecosystem, and therefore everybody needs to know about it. वो कहते हैं ना कि आप जब तक आप उस घुन में पिसते नहीं हैं तब तक तो आप ठीक हैं, बट जिस दिन आप पिस गए उस दिन कहानी खत्म हो गई। तो मुझे लगता है आपको तैयार होना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि साहब मैं उस घुन में ना पिसूं, क्योंकि एक बार मैं पिस गया तो मेरा एक सारी लाइफ जो है रीबूट शुरू हो जाएगी। मुझे सारी चीज़ लाइफ में दोबारा नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, फाइनेंशियली बर्डन इतना आ जाएगा कि आप खड़े नहीं हो पाओगे, इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन। सर, बिफोर आई मूव टू द रैपिड फायर, आई जस्ट लाइक टू एडवाइस फ्रॉम योर साइड। आई वुड लाइक टू request you to share advice to the senior citizen or all the people, क्योंकि deep fakes, AI generated videos, digital arrest, तरह तरह के तरीकों से साइबर क्राइम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, जिंदगी भर की कमाई उनकी खराब हो रही है। तो क्या एडवाइस रहेगा, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ? मेरी एडवाइस आप सब लोगों से होगी कि प्लीज आज आपके हाथ में जो ब्रह्मास्त्र है उसका इस्तेमाल करें। आपका ब्रह्मास्त्र है राइट ऑफ डिस्कनेक्शन। द मोमेंट आपको कोई कॉल आती है जहां पर कोई आदमी आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपको पैनिक में डाल रहा है, तुरंत उस कॉल को डिस्कनेक्ट करिए। अगर आप कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे, यकीन मानिए कल सुबह फिर सूरज उगेगा, कल एक नया दिन जरूर होगा। लेकिन अगर आप उस दौर में चलते चले गए तो उस भंवर में फंसते जाएंगे। दूसरी बात, डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ होती नहीं है। कानून कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। कानून कहता है कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार करना है तो वो खुद आपके घर आएंगे। ये नहीं कि आप ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे हैं और आपको वीडियो कॉल आएगा, साहब हम आ रहे हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट करना है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और तीसरी बात, अब वो दौर आ गया है कि आपको कम से कम लोगों पर विश्वास करना है। कोई लिंक कहीं से आ जाए उस पर क्लिक नहीं करना है। अपनी जानकारी किसी को नहीं देना है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोविड के बाद हमारे जीवन में डर और पैनिक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रोल प्ले करते हैं, बट प्लीज़ इतना मत डरिए कि अपनी सारी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई जो है वो आप इन साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में दे देंगे। मेरे पास हाल ही में केस आया जहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीनियर सिटीजन हैं और ये रह चुके हैं चेयरमैन ऑफ वेरियस बिग कंपनीज, और उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई अच्छे अच्छे बॉन्ड्स में, FDs में लगी हुई थी। उन्हें बोला गया कि साहब इस टेलीग्राम लिंक पर जाइए, और वहाँ पर उस ग्रुप में वो पहुँचे और सारे लोग गुणगान कर रहे हैं इस नई स्कीम के। क्यों होता है सर? क्योंकि स्क्रिप्ट क्या था कि साहब हम आपको 15% रिटर्न पर हफ्ते देंगे। अब आपकी FD तो आपको 7-8% पर साल की दे रही है और आपको पता लगा कि साहब 15% पर वीक मिल रहा है। तो उन्होंने ट्राई किया, पहले 5,000 दिए, 5,000 पर रिटर्न आ गया, फिर 50,000 दिए, 50,000 पर रिटर्न आ गया, फिर 5 लाख दिए, 5 लाख पर रिटर्न आ गया, 50 लाख दिए, 50 लाख पर रिटर्न आ गया। जब वो सेटिस्फाई हो गया कि साहब ये तो बहुत जेन्युइन ऑनेस्ट लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी गाड़ी कमाई, जितने सारे FDs थे, जितने म्यूचुअल फंड से, सबको लिक्विडेट किया और सारे के सारे करीबन 12 करोड़ रुपए लगा दिए। और अब जब 12 करोड़ वापस लेने की बारी आई तो चंपत हो गए। सो मुझे लगता है कि आज वो दौर आ गया है कि हमें अपनी गर्दन किसी के हाथ में नहीं देनी है। हमें, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, शायद हम मिस आउट कर जाएंगे, पता नहीं पुलिस वाला क्या कहेगा। एक तो प्रॉब्लम हमारी है, पुलिस की वर्दी देखते ही हम डर जाते हैं। भाई हमने कुछ गलत काम किया हो या ना किया हो, हम डर जाते हैं। मुझे लगता है हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने बड़ी मेहनत के साथ अपना पैसा कमाया है, प्लीज़ उस पैसे को साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में एक
थाली पर मत परोसिए, क्योंकि वो तो आपका पैसा लेकर चंपत हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, अज्यूमिंग कि आपसे गलती हो गई, आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए, जिस वक्त आपको रियलाइजेशन है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए, तुरंत उस एपिसोड से बाहर आइए, उस फोन को डिस्कनेक्ट करिए, उस ईमेल कम्युनिकेशन को बंद करिए। क्यों? जितना पैसा गया सो गया, उसके बाद पैसा ना जाए। वो कहते हैं जहां से जागो वहीं से सवेरा समझो। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जग जाएं। लेकिन अगर आप ये लगातार इस डर में बने रहें कि साहब मेरे बच्चों को मार देंगे, मुझे मार देंगे, और अब तो साइबर क्रिमिनल्स रिमार्केबल हो गए। मेरे पास एक केस आया है, ये लेडी हैं, करीबन 72 साल की हैं, अकेली हैं, विडो हैं, फार्म हाउस में रहती हैं, बच्चे सब बाहर हैं, और उन्हें डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया। तो उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानती। तो साइबर क्रिमिनल्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा डोंट वरी मैडम, आपके फार्म हाउस के बाहर हमने शार्प शूटर्स रखे हुए हैं, एक कलाकारी करी, हम सबको उड़ा देंगे, हम आपको उड़ा देंगे, आपके बच्चों को उड़ा देंगे। जब बंदे को ये पता लगने लगा कि साहब मेरी जान जाने वाली है, मेरे बच्चों की जान जाने वाली है, उन्होंने कहा मेरी जान छोड़ो, जितने पैसे लेने हैं लो और चंपत हो जाओ। तो करीबन 4.5-5 करोड़ रुपए लेकर वो लोग चंपत हो गए। आज तो प्रॉब्लम यह है कि साइबर क्रिमिनल्स जो है डीपफेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं और अपनी बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं, उनके फ़ोन पर कॉल आता है कि कॉल सुप्रीम कोर्ट से आया है, और उनको कहा जाता है कि वीडियो कॉल ऑन करिए, आपका मुकदमा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वकाल की अदालत में चल रहा है। वो ऑन करते हैं, वो देखते हैं कि साहब ये तो मुकदमा चल रहा है, कोई जेट एयरवेज का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, उसमें बताया जा रहा है कि साहब ये इंडस्ट्रियलिस्ट का भी नाम है। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस बोलते हैं कि साहब अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें ना इन्वॉल्व किया जाए तो आप 7 करोड़ रुपये जमा कराइए। वो कन्विंस हो जाते हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखा है, सुना है ये ऑर्डर पास करते हुए, और वो 7 करोड़ रुपए जमा करा देते हैं। और बाद में उन्हें पता लगता है कि वो डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो गए हैं, डीप फेक के शिकार हो गए हैं। सो मुझे लगता है कि आज साइबर क्रिमिनल्स कॉन्स्टेंटली नए नए पैंतरे अपना रहे हैं लोगों को डिफ्रॉड करने के लिए। और ये जब डिफ्रॉडिंग अब ज़्यादा AI इनेबल्ड डिफ्रॉडिंग हो रही है, न्यू एज क्राइम्स हो रहे हैं। डीप फेक तो एक हो गया, वॉइस क्लोनिंग दूसरी हो गई, फिर AI इनेबल्ड ऑनलाइन फ्रॉड्स तीसरे हो गए। तो आपको एटलीस्ट जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप कहीं ना कहीं इस भंवर में फंस जाएंगे। तो अपनी एंटेना लेवल्स को बढ़ाइए, अपनी जागरूकता को बढ़ाइए, और लोगों के बारे में बात करिए, सुनिए, अखबार पढ़िए, इंटरनेट पर जाइए, लेकिन कुछ भी करिए जल्दबाजी में कुछ भी ना करिए। क्यों? जल्दबाजी में, पैनिक में आप हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ कर जाएंगे जिससे आजीवन आप पछताएंगे। एंड अज्यूमिंग, चलिए आपसे गलती हो गई, हम लोग सब गलती के पुतले हैं ना, ह्यूमंस हैं, नो प्रॉब्लम, गलती हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्लीज चुप नहीं बैठेंगे, आप रिपोर्ट जरूर करेंगे। और गवर्नमेंट ने आपको 2 विकल्प दे रखे हैं। आप कॉल करिए 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और वहाँ पर तुरंत कॉल करिए। ये जो कॉल नंबर है ये पुलिस मैन करती है, इनका टाई अप बैंक्स के साथ है। द मोमेंट आपने कॉल किया वो एकदम अपने सिस्टम में देख लेंगे आपका पैसा बैंकिंग चैनल में अभी है या नहीं है। अगर है तो उसको वो फ्रीज करेंगे और पैसा आपके पास वापस आएगा। दूसरी बात, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं, cybercrime.gov.in, वहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्ट करिए। चुप नहीं बैठना है। वो दौर चला गया कि लोग क्या कहेंगे। आज तो मुझे लगता है दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं, और दूसरे वो जिन्हें मालूम नहीं है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। सो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हर आदमी का नंबर आ रहा है, आप रिपोर्ट करिए, जल्द से जल्द रिपोर्ट करिए, और कोशिश करिए अपना पैसा वापस लाने की। और अल्टीमेटली अब तो मैं सरकार के कह रहा हूँ कि साहब हमारे जो सिस्टम है थोड़ा ब्रोकन है। आज जब मेरे अकाउंट से पैसा जाता है तब मेरा टॉप प्रायोरिटी ये नहीं है कि साहब जिसने चुराया है उसको लिया, उसको पकड़िए, उसको जेल भेजी। मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेरा जो पैसा गया, मेरा पैसा वापस आना चाहिए। तो इसलिए आपको नए लीगल फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे ताकि लोगों का पैसा वापस आ सके। और उसमें मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि अधिकांश जो पेमेंट्स हैं बैंकिंग सिस्टम से जा रही हैं। तो अगर RBI कहता है कि अगर आप एज अ बैंक आपने इस तरह के ट्रांजैक्शन अलाउ किए तो आप पैसे की भरपाई करेंगे। एक बार आपने इस तरह का लॉ लिया है और आपने बैंक्स को ज़्यादा जिम्मेवार बनाना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है बैंक्स ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे। ये सो मच जो म्यूल अकाउंट्स हैं, फिक्टिशियस अकाउंट्स हैं, वो कम हो जाएंगे, फ्रॉड्स भी कम हो जाएंगे। तो अभी क्या होता है, बैंक के पास जाओ, बैंक कहता है मुझे क्या पता, आपने किया होगा, आपका कार्ड है, आपने दिया ना, अच्छा OTP आपने दिया, सब काम आपने किया। मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है भाई। बैंक आप हो, आपको पता है मेरे अकाउंट से इतना पैसा जा रहा है, आपने क्या किया उस पैसे को रोकने के लिए।
आपके पास या तो डेफर्ड पेमेंट पर कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि चलिए जी 2 लाख या 5 लाख से ऊपर पेमेंट है, अगले 2 घंटे नहीं जाएगी, ताकि कुछ टाइम पीरियड तो दीजिए आप विक्टिम को, उसको पता लगे, वो रिपोर्ट करे, मैटर कहीं ना कहीं बीच में स्थगित किया जा सके, पैसे को बचाया जा सके। बट कहीं ना कहीं आपको लॉ को बदलना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू मेक द बैंक्स मोर अकाउंटेबल। अल्टीमेटली द मोमेंट आप लोगों को उनके पैसे वापस दिलाना शुरू कर देंगे, लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। अभी वो काफ़ी इरोडेड महसूस करते हैं कि यार एक तो पैसे चले गए, अब दूसरी बात मुझे पुलिस के हाथ में फिर एम्बैरेसमेंट हैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी, क्या फ़ायदा, चलो छोड़ो। अब छोड़ो तो समझ आती है, 10, 20, 50 हज़ार समझ आती है, लाखों छोड़ो नहीं समझ आती, करोड़ों छोड़ो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पूरा रीवर्क करना पड़ेगा इस लीगल सिस्टम को लेकर। बिल्कुल सर, पहली बात तो है अवेयरनेस, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपने कहा सर, और हो भी जाती है वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो भी एग्जाम्पल दिए वो सब एजुकेटेड लोग हैं, बोर्ड में हैं, डायरेक्टर हैं, VPIT हैं, उनके साथ भी हो रहा है, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो रिपोर्ट करना, एक्शन लेना और तुरंत एक्टिवेट करना अपने जितने भी मैकेनिज्म जिस पे बात करी सर। एक और चीज़ है जिस पे मैं एडवाइस आपको चाहूँगा सर, आप मेरे ऑडियंस को दो, वो ये है कि जो बच्चे हैं या कोई भी सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उस पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कोई मजाक के लिए बोल देता है, कुछ कर देता है, तो वहाँ पर क्या सेफ्टी और वो चीज़ें उनको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है सब लोगों को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आज हम उस युग से गुजर रहे हैं जिसे मैं बोलता हूँ इट्स द न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर। इस युग में 2 रेवोल्यूशंस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ये क्रांतियाँ हैं। पहली क्रांति को मैं बोलता हूँ भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहाँ पर पाता हूँ कि भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, चाहे वो प्रोफेशनल डेटा हो, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बिना सोचे समझे कि उसका असर उनकी प्राइवेसी, पर्सनल प्राइवेसी या डेटा प्राइवेसी पर क्या पड़ने वाला है। दैट्स वन। सेकेंड इक्वली इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इज द ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। भारत में हर आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। भाई क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? अच्छा, रिकॉर्ड करने के बाद होगा क्या? फिर आप भूल जाएंगे, दाएं बाएं कहीं चीज़ पड़ी रहेगी, कौन बंदा एक्सेस करेगा, कौन हैक करेगा, आपको पता नहीं। तो इन 2 रेवोल्यूशन से आपको अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह के रेवोल्यूशन में पड़े रह गए तो कहीं ना कहीं यू विल बी इन अ मच बिगर प्रॉब्लम एरियाज। एंड फाइनली आई थिंक सोशल मीडिया इज़ नॉट अ वॉमिटिंग प्लेटफॉर्म। ये बात की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। भाई अपने दिल की भड़ास निकालनी है, इंटरनेट पे नहीं निकालनी, सोशल मीडिया पे नहीं निकालनी। वो कहते हैं ना कि साहब आपने एक गलती करी सोशल मीडिया, वो इतनी ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगी कि आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ गलत बोली, आपके बरखिलाफ 2 चीज़ें गलत बोलने वाले लाखों लोग तुरंत पैदा हो जाएंगे। तो आप किस किस के साथ लड़ेंगे? और फिर एक बार आपकी नकारात्मक नेगेटिव चीज़ इंटरनेट पर आ गई, सोशल मीडिया पर आ गई, तो फिर वो जाएगी नहीं कहीं पे। ठीक है, कुछ राष्ट्रों में कानून आपको राइट टू फॉरगेट बोलता है कि साहब आपके पास राइट टू फॉरगेट है, बट इंडिया में राइट टू फॉरगेट है ही नहीं। इंडिया में जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो राइट टू फॉरगेट की बात करता ही नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरा डेटा वहाँ से लुप्त हो जाने वाला है, तो कहीं नहीं लुप्त होने वाला है। कहीं ना किस तरीके से वो डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। और अब तो AI इतना खतरनाक आ गया है, AI चीज़ें ऐसी निकाल के लेकर आ रहा है जिसके बारे में आप भूल चुके हो, लेकिन यू फाइंड कि बस AI हैज़ बीन एबल टू पिक इट आउट। सो प्लीज वील हैव टू encourage youngsters, you must have cyber hygiene methodologies when you are on social media. People must be sensitized on what to publish, what not to publish. जल्दबाजी में, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में कृपया कुछ काम इंटरनेट पर ना करिए, क्योंकि अक्सर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड अल्टीमेटली सोशल मीडिया पर एक सत्य जो है हमेशा याद रखिए, अगर आज आपके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं या 50,000 फॉलोअर्स हैं, कल खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है और आप ICU में पहुंच जाते हैं, मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि उनमें से शायद 2 या 5 लोग भी आपके पास ICU में मिलने नहीं आने वाले हैं। सो ये गलत भ्रम से बाहर निकलिए कि साहब इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, मैं यहाँ महान बन रहा हूँ। सॉरी, मैं महान कहीं नहीं बन रहा हूँ। ये सिर्फ अपने आप को गुमराह करने का एक नया तरीका है। सो वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट, देन टू अ लार्ज एक्सटेंट यू विल बी फार मोर मेजर्ड इन हाउ यू विल बी एबल टू गो हेड एंड पब्लिश कॉन्टेंट एंड नेवर पब्लिश डेफोमेटरी कॉन्टेंट। अगर आपने कुछ मानहानि वाला कॉन्टेंट कहीं प्रकाशित कर दिया, गुस्से में, गलती से, भड़ास निकालते हुए, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में, समझ लीजिए कि आपने बीज बो दिया। वो बीज जब उगेगा
वो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ लेकर आएगा। आप पर मुकदमेबाजियाँ होंगी, आप पर क्रिमिनल कंप्लेंट्स होंगी, साइबर क्राइम कंप्लेंट्स होंगी, और उससे असर आपके करंट जॉब पर पड़ सकता है, फ्यूचर जॉब प्रॉस्पेक्ट पर पड़ सकता है। तो ये सब पंगे कर रहे क्यों हैं? अगर हम थोड़ी बहुत मेच्योरिटी ले लें और हम कहेंगे ठीक है, AI, सोशल मीडिया, इंटरनेट टूल है, उसको जितना जुडिशियसली हम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यानी जितनी ज़रूरत है और जितना आपको अपने अपने ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, काम करने में, उतना ही यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरी इसका इस्तेमाल किसी को डिफेम करने में या फिर किसी को गाली गलौज करने में या अपनी भड़ास निकालने में नहीं निकालना चाहिए। आज हो सकता है आपको नहीं पता चले, लेकिन 5 साल बाद या 10 साल बाद कह रहे हैं ना, डेटा जाता नहीं है कहीं, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। एक लड़की है, जर्नलिस्ट है, 2007 में उन्होंने कहा कि साहब मैं लाइफ में एक्सपेरिमेंट करती हूँ, चलिए मैं लिव इन रिलेशनशिप करती हूँ। तो उन्होंने को जर्नलिस्ट के साथ लिव इन रिलेशनशिप करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि साहब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं एक नया ब्लॉग पोस्ट खोलती हूँ और रोज़ मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं लिव इन रिलेशनशिप के मैं ब्लॉग पर डालूंगी। तो ये लिव इन रिलेशनशिप 9 महीने चलता है। 9 महीने में रोज़ वो अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिखती हैं कि आज मेरा ये इंप्रेशन है, आज मेरा ये फीलिंग्स हैं। 9 महीने के बाद वो लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। 3 साल बाद उस लड़की की अरेंज मैरिज हो रही होती है, परसों शादी है। आज एक शैतान दिमाग वाला जर्नलिस्ट जो दूल्हा होने वाला है उसके पास पहुंचता है, उसे कहता है आप किससे शादी कर रहे हैं, देखिए ये उसके ब्लॉग पोस्ट हैं। होने वाले दूल्हे को ब्लॉग पोस्ट पढ़ाता है, दूल्हे का माइंड चकरा जाता है, शादी टूट जाती है, लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। ये बात 2010 की थी, आज तो साहब 2026 है। तो आप जितनी जल्दी समझ लीजिए बॉस, आप किस खतरे के साथ खेल रहे हैं उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ हो या ना हो आपके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा होने वाले हैं। और वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सैडिस्टिकली प्लेजर देंगे जब वो आपकी कुछ खुराफा चीज़ें निकालेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो कोशिश करें अपनी गर्दन किसी के हाथ में ना दें। बिल्कुल सर, साइबर हाइजीन बहुत अच्छा वर्ड है और उसको समझें और अपने दायरे को समझें कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर्सनल चीज़ें तो आपको दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि पर्सनल चीज़ें आपको कभी ना कभी हार्म कर सकती है। आई नो सर, आपका इंगेजमेंट है और हमें इस पॉडकास्ट को पूर्ण विराम देना है, क्योंकि हम जितनी बातें करेंगे इन्फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होने वाली। आपने 200 किताबें लिखी हैं, लाइफ का इतना तजुर्बा है, तो नेक्स्ट एपिसोड भी हम आपके साथ बनाएंगे विद स्पेसिफिक टॉपिक। बट बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, वी हैव सम रैपिड फायर व्हिच आई वांट टू आंसर यू सर। Sure, please go Okay. ahead. So what is the very first thing you check on your phone every morning? The first thing that I check on my phone every morning is what's happened in the last 24 hours, Okay. specifically the last 8 hours across the world in internet on AI emerging technologies. Okay. क्योंकि जो 8 घंटे में आप सो रहे थे, जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में एक ब्रॉड अपडेट मिल जाए तो उस दिन की शुरुआत अच्छी होती है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जाते हैं सर? कोई एक विचित्र प्लेटफॉर्म नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें Follow कर रहे हैं ट्विटर रहता है, Right. गूगल रहता है, सोशल मीडिया रहता है, AI रहता है। तो आप अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेटली डिश आउट करने के लिए कि साहब हो क्या रहा है और उन ट्रेंड्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं और उसका सीधा असर आपके रोज़मर्रा के काम के साथ, जीवन के साथ, के प्रोजेक्ट के साथ क्या होने वाला है। सर आपके उस फील्ड में फेक न्यूज़ आता है? हम लोग बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आता है, सो मच सो कि आपको भी एक नया लेंस लगाना पड़ता है कि साहब ये तो ठीक नहीं लग रहा, चलो इसको छोड़ देते हैं। Okay. कोई जहाँ पर हमें घंटी नजर आती है कि साहब ये तो माइंड को अपील नहीं करता, हम उसको तुरंत डिसरिगार्ड कर देते हैं कि क्लिक साहब नहीं सुनिए। करना है, क्लिक नहीं करना है क्लिक उसको। तो बिल्कुल करना ही नहीं है, हमने सिर्फ सुनना है, देखना है, क्लिक कुछ नहीं करना है। हो सकता है हमारा क्लिक हमको कहीं और ले जाए, हमें नुकसान पहुंचा दे। बिल्कुल सर। इन वन वर्ड, हाउ वुड योर फैमिली डिस्क्राइब यू एट होम? My family would describe me as a normal son, a normal husband, a normal father who's trying to do his level best to give every good values and every good tradition to the family. Okay, it's really you're grounded, sir. What keeps you awake more at night? Cyber threats or pending deadlines or cases जो कल होने वाला है hearing? What keeps me up every night is the fear that what's going to happen once technology overtakes human civilization and its intelligence, because we are still not prepared for it. Adequate legal safeguards, guardrails have not yet been established, and very quickly we are realizing that we are sitting on a running tiger. The tiger is of emerging technologies and AI. We do not have the ability to get off the tiger. We must calibrate our approaches on how to deal with this running tiger while it continues to run at an amazing speed. And sir, do you ever get tempted to click on suspicious link just out of curiosity? वो तो आप कभी करते ही नहीं होंगे। Never, as a matter of precaution, never on any link, whatever be your curiosity. आपके किसी क्लोज रिलेटिव्स उसने किया?
हमारे क्लोज परिवार में लोगों ने किया। Okay. आप लोगों को बताते रहते हैं आप ना करो, लेकिन वो कहते हैं ना समय महान होता है। जब समय आता है तो वो आपको भाग के ले जाता है। तो आपको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप गलत काम करेंगे, क्यों? हो सकता है शायद समय ने ऐसा कहा था। वही है ना सर, नक्षत्र ग्रह खराब हो रहते हैं तो चले जाते हैं क्लिक्स उधर। हैव यू एवर स्कैर्ड फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स विद साइबर हॉरर स्टोरीज? I choose not to scare them, but I often tell them, update them. Okay. I empower them by telling them what has happened, so that at least they will have that at the back of their minds. The idea is not to scare them. The idea is to empower their hands, so that once they face those situations, they are in a much better position to face them. Right, sir. And you might be traveling a lot. तो बहुत लोग वाईफाई पब्लिक में यूज कर लेते हैं फ्री वाला. What is your advice? And आप करते हैं सर ऐसा? मुझे लगता है कि दुनिया भर में फ्री लंच नाम की चीज़ होती नहीं है। तो अगर आप फ्री पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आग के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि फ्री पब्लिक वाईफाई के साथ बहुत सी अनवांटेड गिफ्ट्स आ रही हैं। स्पाईवेयर आ रहा है, मैलवेयर आ रहा है, कंप्यूटर कंटामिनेंट आ रहा है, आपका डेटा जा रहा है। तो इज इट रियली वर्थ इट? बेहतर है अपने कनेक्शन इस्तेमाल करिए, अपनी सिक्योर कनेक्शन से जो भी ट्रांजैक्शन करना है करिए। पब्लिक वाईफाई के छोटे लालच में मत पड़िए। आपका डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क, आपका कम्युनिकेशन डिवाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, अभी के टाइम में तो ये भी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, जेनजी हैं, ये सब अगर मान लो डेटा खत्म हो जाता है तो फ्री वाईफाई जोन में चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, किसी मॉल में फ्री वाईफाई जोन है तो वहाँ चले जाते हैं जस्ट टू यूज द डेटा। सो विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपका फ़ोन चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस मोबाइल डिवाइस में। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग फ्रीबी, और मुफ्त में कुछ भी नहीं आता। सर, हैव यू एवर रिसीव्ड अ स्कैम कॉल और आपने उसके साथ बातें करी होंगी बहुत देर, क्योंकि आपको पता है लेकिन आप थोड़ा बहुत बात कर रहे हो, उसको थोड़ा इंटरटेन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, क्या है नहीं है, आपने ऐसा किया है? बहुत बार हुआ। आज दोपहर मुझे यहाँ कॉल आती है कि साहब ऐसा है, आपकी एड्रेस पर ये हम वाईफाई लगाने वाले हैं, तो आप प्लीज़ अपना एड्रेस बताइए। मैं फलां कंपनी से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर आप कंपनी से बोल रहे हैं और आपको वाईफाई लगाना है तो आपको पता होना चाहिए एड्रेस क्या है। सर हमारा गैस है कि एड्रेस ये है, तो सर कुछ बात करी। फिर हमने कहा साहब आपका गैस गलत है, फिलहाल हम फ़ोन बंद करते हैं, आप कृपया कहीं और दरवाज़ा खटखटाइए। सो मुझे लगता है गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं, लोग गालियाँ करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि दूसरा बंदा आपको 10 गुना ज़्यादा गालियाँ देगा। तो अल्टीमेटली आप अपने मेंटल पीस को क्यों गंवाना चाहते हैं? बेस्ट इज डिस्कनेक्ट करो, मतलब नॉट रिक्वायर्ड। आपका उद्देश्य था मुझे बेवकूफ़ बनाना, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, मैं आपको डिस्कनेक्ट करता हूँ, अपने सिस्टम से बाहर निकालता हूँ, जो करना कर लीजिए। बिल्कुल, और यही तरीका ही होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है, आपको पता चल गया वो कॉल फेक है, बस आप अपने टाइम भी ना वेस्ट करें। वैसे बहुत लोग फन कर लेते हैं, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ सर जब फ्री टाइम होता है तो, बिकॉज हमें नॉलेज है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि मुझे नॉलेज है और हमारे पास न्यूज़ आती है बीइंग मीडिया। बट लोगों को इस चीज़ के ऐसे कॉल से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और काट देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जितनी देर आप उनसे, हो सकता है ऑनलाइन कॉल पे हो, कुछ ना कुछ आपके साथ हो सकता है। तो विल नॉट प्रमोट दिस कि आप फन करें, ऐसे कॉल्स के साथ कट कर देना चाहिए। Sir, if you had to give a one golden rule to people using the internet daily, what would it be? My golden rule for people using the internet is please exercise your right of disconnection more judiciously, more frequently. Internet एक ओपियम जैसी जगह है, आपको एक नए नशे, एक नए हाई में लेके जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए इंटरनेट से बाहर कब आना है, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कब करना है। एक बार आपको वो पावर पता लग जाती है, तब ये इंटरनेट कभी भी आप पर हावी नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। सर, ये हमारा रैपिड फायर भी खत्म हो गया, लेकिन अब हमारा ये आखिरी है, विच इज़ योर फाइनल मैसेज टू ऑल आवर ऑडियंसेस, बिकॉज 2026 की शुरुआत हो रही है, AI है, सब कुछ है। शॉर्ट क्रिस्प मैसेज क्या होगा, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे कंपनीज हैं, व्हाट दे नीड टू, इट्स अ जनवरी स्टार्टिंग ऑफ दिस न्यू ईयर, व्हाट वुड बी द फाइनल मैसेज टू ऑल ऑफ देम? My final message to all stakeholders will be, please wake up from your deep slumber. The life is moving very, very quickly. Technologies have come up with at amazing speed, and the quicker you are able to understand the legal policy ramifications of emerging technologies, the better it is. तो मेरा हिदायत, निवेदन, हाथ जोड़ के सबने निवेदन होगा, प्लीज़ अगर आप यूज़र हैं तो इंटरनेट को बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। कोशिश करें कम से कम अपने इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स को छोड़ के जाएं, बिकॉज उसी का इस्तेमाल कर साइबर क्रिमिनल्स और सरकारी एजेंसीज आपके बतलाव आ सकती हैं। अगर आप कंपनीज हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लॉ, एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स को कंप्लाई ज़रूर करिए।
इंतज़ार ना करिए, अपने लक पर बहुत वेट ना करिए, क्योंकि एक मुकदमा, एक शिकायत, एक कंप्लेंट आपका आने वाला भविष्य को ख़त्म कर सकती है। एंड अल्टीमेटली लेट्स ऑल imbibe the culture of cyber security as a way of life. Let's all encourage to imbibe cyber resilience as a mindset. क्यों? मान के चलें कि आक्रमण तो होगा, मान के चलें कि साइबर क्राइम हमें टारगेट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि जब वहाँ साइबर क्राइम हो गया या साइबर अटैक हुआ हम पैनिक हो जाएं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वंस साइबर अटैक हो जाता है हम कितनी जल्दी वापस पुनः नॉर्मलसी पर आ सकें, वो इंपॉर्टेंट है। तो इन बेसिक चीज़ों को समझ के रखिए और हमेशा समझ लीजिए कि साइबर क्रिमिनल्स आपसे 50 कदम आगे चल रहे हैं। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपको फंसाने की जो तरकीबें हैं कहीं ना कहीं बन रही हैं, चाहे वो नूह में बन रही हों, चाहे वो जामताड़ा में बन रही हों, चाहे वो छोटे से गाँव में बन रही हों। इसलिए बी केयरफुल, adopt cybersecurity as a way of life, and encourage others also not to indulge in those kinds of practices which can expose them and their data to indirect or unwanted legal consequences. Great message to conclude this podcast, and it would have been never better with these messages what you are throwing to my audiences, sir. इसी के साथ मुझे उम्मीद है सर आपको भी मज़ा आया होगा हमारे साथ बातचीत करके, और आप हमेशा समय देते रहते हैं, हम इवेंट्स पे भी मिलते रहते हैं और आपसे हमेशा इन्फॉर्मेशन अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक्ड इट सर। व्हाट अबाउट अस? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे तो आपका सराहना और आपकी प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने इतना डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे और हम लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर बात करी। सो thank you for such 360-degree view that you've taken. I've thoroughly enjoyed. Right. Congratulations, और मुझे उम्मीद है कि आपका पॉडकास्ट सफलता के नए परम शिखर पर आगे और बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ये हम एपिसोड खत्म करेंगे यहीं पे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि पवन सर के साथ फिर बैठेंगे कुछ आने वाले वक्त में। तब तक शायद और भी एक्ट आ चुके होंगे और नई जो डेवलपमेंट हो रही है साइबर लॉ में उस पर जरूर बात करेंगे। पवन सर से और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर किसी तरह का आपको कोई एडवाइस लेना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम पवन सर से कोशिश करेंगे कि आपको कनेक्ट करा के कुछ एडवाइजेस अगर हैं तो वो सर आपको दे सके। सो सर थैंक यू सो मच। वी फॉलो यू एंड विल कीप फॉलोइंग यू बिकॉज आप हमें हर दिन अपडेट रखते हैं कि क्या नया है लीगली और क्या हमें फॉलो करना चाहिए सर। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आज के इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, साइबर लॉ सिर्फ लॉयर्स या कंपनीज के लिए नहीं है बल्कि हर डिजिटल यूजर्स के लिए जरूरी है। डिजिटल वर्ल्ड में सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस अब ऑप्शन नहीं रहा। डॉक्टर पवन दुग्गल के साथ आज की डिस्कशन ने हमें यह समझाया कि साइबर थ्रेट सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है बल्कि लॉ गवर्नेंस और ह्यूमन बिहेवियर का कॉम्बिनेशन भी है। डेटा प्रोटेक्शन से लेकर एआई रेगुलेशन तक, डिजिटल आइडेंटिटी से लेकर साइबर स्कैम्स तक हर टॉपिक ने ये हाईलाइट किया कि अगर हम प्रोएक्टिव नहीं हुए तो consequences रियल और सीरियस भी हो सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ टेक इट इजी विद राजीव एंड एंटायर टीम, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन सर। थैंक यू सो मच। आपकी गाइडेंस सिर्फ नॉलेज ऐड नहीं करती बल्कि लोगों को डिजिटली रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए इंस्पायर भी करती है। टू आवर व्यूअर्स, अगर आज की कन्वर्सेशन ने आपको एक भी मूवमेंट के लिए यह सोचने पर मजबूर किया है कि मैं अपनी डिजिटल लाइफ को और सिक्योर कैसे बना सकता हूं, देन दिस एपिसोड हैज डन इट्स जॉब। अगर आपको यह एपिसोड इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि टेक इट इजी विद राजीव पे ऐसे एपिसोड तो आते ही रहेंगे और आने ही वाला है, बहुत सारा एपिसोड आने वाला है। मैं हूं राजीव, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।